Hello and good evening. Welcome to the Economy Foundation course. I hope you can see and hear me. Very good evening to all of you. Good evening. Hope you can all see and hear me. Okay. So, we will continue from yesterday, wherever we were. We were in banking, so we will understand yesterday. I hope, yes, you would have understood the various types of banks yesterday. आपको उसका logic समझ आ गया होगा. We will now continue from that. We will also today understand various types of banks. We will understand other financial institutions. इसमें we will understand two things. One is AIFI. In this we will focus, which is All India Financial Institutions, and we will focus on NABARD here mainly. And we will also understand something called non-banking financial companies, NBFCs. These are the three things we are going to do. I saw there were some questions in the chat on classes from 7th January. Those are prelims revision economy classes, not meant for you. ठीक है? So not meant for you. You don't have to see them. It's the same content. वहाँ वही डिमांड सप्लाई से शुरू होगा. आपको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है? All right. So यहीं से कंटिन्यू करते हैं. कल हमें टाइप्स ऑफ बैंक समझ आए थे, है ना? We had understood types of banks yesterday. At least इसका लॉजिक आपको क्लियर है कि कौन सा बैंक क्या करता है. Right? I hope the logic is clear to you. Which bank does what purpose and why it was established. I hope there is no doubt here now. ठीक है? हाँ, एक स्टेरिलाइजेशन का भी टॉपिक रहता है, वो आज देख लेते हैं. स्टेरिलाइजेशन वाज एक वो बीच में छूट गया था. स्टेरिलाइजेशन भी आज देख लेंगे. ठीक है? नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ बैंक्स. यहीं से कंटिन्यू करते हैं. देखो, जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स हमने पढ़े, यार प्लीज यू हैव टू स्टॉप the spamming in the chat. If you keep writing topics in the chat, like if you are writing foreign exchange rate, liquidity trap, I will teach you this, but we have to go in a sequence. When I'm done, उसके बाद liquidity trap अगर बच जाए तो आप पूछ सकते हो. Don't have to ask me all of these things at once, right? We will come to that. हम एक sequence में चल रहे हैं. I will not miss anything. अभी तक भी तो we have not missed any topic. तो अभी आगे also we will not miss anything, है ना? Let's focus on the things we are doing at the moment. पहले ये खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब आगे चलेंगे, I will explain liquidity trap to you in detail. Okay? All right. तो ये हमने कल पढ़ा था. बट अगर हम एक्चुअली देखो, ये चीज मेंस में तो नहीं आती. दिस थिंग इज नॉट आस्क्ड इन द मेंस कि कौन से बैंक का किस टाइप का फंक्शन है. ऑफ कोर्स देयर इज वन टाइप, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द प्रीलिम्स ऑन दिस. प्रीलिम्स में इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पेमेंट्स बैंक ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कर सकता है या नहीं कर सकता है. एंड दैट इज व्हाई it is important to understand these types and also understand the various functions of these types. अब हमने इसका लॉजिक समझ लिया है. अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, राइट? कि किस पे सीआरआर अप्लाई होता है, किस पे एसएलआर अप्लाई होता है, किस बैंक की पीएसएल नॉर्म क्या है, उसको रेगुलेट कौन करता है, ये सारा हम एक बारी में पढ़ेंगे. जस्ट रिवाइजिंग विद यू वंस द टाइप्स ऑफ बैंक्स वी हैव रेड कमर्शियल बैंक्स, वी हैव रेड कोऑपरेटिव बैंक्स, we have read about universal bank, we have read about differential banks. Differential banks mein also we have read about two things. One is payments bank, second is small finance bank. We have also read about regional rural banks as a mechanism for financial inclusion in rural areas. ये भी हमने देखा है, राइट? अब इन सारे बैंक्स का एक्चुअल नॉर्म्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हाउ डज आरबीआई डिसाइड. वी हैव आल्सो रेड अबाउट शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. है ना? ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं.
नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू द एक्चुअल नॉर्म्स ऑफ दीज बैंक्स। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, एंड अगर आपने आज से पहले पढ़ा है, आई एम श्योर यू रियलाइज दैट दिस इज समथिंग दैट बिकम्स कंफ्यूजिंग आल्सो, बिकॉज हर बैंक के नॉर्म्स अलग अलग याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो मैंने इसके लिए क्या सोचा, आई थॉट दैट आई विल क्रिएट वन टेबल जिसमें सारे बैंक्स के सारे नॉर्म्स एक जगह पे दिए हुए होंगे। आपको लॉजिक समझ आता है तो आपको वो नॉर्म्स भी समझ आ जाएंगे, राइट? सो आई क्रिएटेड दिस has also been uploaded, yeah, it will get uploaded in like a couple of minutes to your portal. This is one table जिसमें सारे बैंक्स, यहाँ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक क्या होता है वो हम देखेंगे, राइट? ये सारी चीजें एक टेबल में हमने डाल दी, ठीक है, ताकि आपको जब एंड में प्रीलिम से पहले रिवाइज करना होगा तो आप बार बार आप अलग अलग जगह जाके रिवाइज ना करो, सब कुछ आपको एक टेबल में मिल जाए। अगर बैंकिंग से क्वेश्चन आना होगा तो इस टेबल से हो जाएगा। इसमें हमने और भी एक दो चीजें यहाँ पे देखनी थी, लाइक देयर कैन बी फॉरेन बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इन सबको एक जगह पर मैंने डाल दिया है इस टेबल में, ताकि जब आप प्रीलिम्स देने जाओ आप बस ये 2 पेज प्रिंट करके अपने पास रख लो और इन 2 पेजेस से सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब इस 2 पेजेस को साथ में पढ़ते हैं। सो आई विल रीड एवरी सिंगल थिंग दैट इज रिटन हियर, ताकि यहां पर कोई डाउट, ऑल्दो लॉजिक हमें क्लियर है, ये फैक्ट्स हैं, बट फिर भी हो सकता है हमें कोई डाउट आए, तो हम एक एक करके ये पूरा डिटेल में सारे बैंक्स के लिए पढ़ लेते हैं एक के बाद एक, तो हमें क्लियर हो जाएगा इनका रेगुलेटर कौन है, इनकी गवर्निंग एक्ट क्या है, इनका पर्पस क्या है, इनको लाइसेंस कैसे मिलता है, ये डिपॉजिट ले सकते हैं या नहीं, लोन फैसिलिटी दे सकते हैं या नहीं, क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं या नहीं, टारगेट कस्टमर्स क्या हैं, जोग्राफिकल कोई इन पे रेगुलेशन है या नहीं है, इनकी ओरिएंटेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड है या ये कोऑपरेशन ओरिएंटेड है, इन पे सीआरआर अप्लाई होता है, एसएलआर अप्लाई होता है, पीएसएल नॉर्म अप्लाई होती हैं, अप्लाई होती हैं, बाकी कोई और डिटेल्स जो इसके रेलेवेंट हो, राइट? और इनके एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। सो दिस विल कवर एवरीथिंग विद रिगार्ड्स टू बैंक्स, ठीक है? पहले तो ये बात समझ आई, अब हम ये वाली पीडीएफ एक बार डिटेल में साथ में पढ़ लेते हैं। These will effectively act as your one-pager notes for banking also, and this, इसके अलावा आपको बैंकिंग में फिर कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फेयर इनफ। अब मैं इसको जूम कर रहा हूं, अब बस मुझे बता देना when it becomes visible to you। अभी तो I don't think visible होगा, I'm just zooming this। I think now it is visible, fairly visible now। अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। If it's visible you can just write yes। एक एक करके इसको फिर पढ़ते हैं। लेट्स रीड दिस पीडीएफ इन डिटेल, ताकि हमारा बैंकिंग में कोई डाउट बचे ना। अब विजिबल है ना? ठीक है, सबसे पहले है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के नाम से तो क्लियर है हमें, फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर ना, नाम से क्लियर है ना ये क्या है, राइट? अब दे आर पार्ट ऑफ सेकेंड शेड्यूल। नाम से क्या पता चल रहा है, सेकेंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पार्ट है, और इनका पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग, है ना? ये दोनों चीजें हमें क्लियर है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले, और यही हर बैंक को हम इसी फॉर्म में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होगी, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, डिपॉजिट्स, लोन्स, सब कुछ देते हैं, ठीक है? हु गवर्निंग एक्ट, 2 एक्ट से गवर्न होंगे, एक तो आरबीआई एक्ट से गवर्न होंगे, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से गवर्न होंगे, ये भी क्लियर है। हु इज गोइंग टू बी द रेगुलेटर, regulator of scheduled commercial banks, all banks like SBI, Axis Bank, etc. Who is the regulator? RBI is the regulator। पर्पस क्या है, ब्रॉड बेस्ड पर्पस है, सारे पर्पसेस। ये भी एक बैंकिंग स्ट्रक्चर हम आज देखेंगे इंडिया का, तो उसमें हमें और भी डिटेल में समझ आएगा। बट इफ यू लुक एट SBI, इट इज गिविंग एजुकेशन लोन ऑल्सो, होम लोन ऑल्सो, कार लोन ऑल्सो, इट इज गिविंग बिग इंडस्ट्रियल लोन्स ऑल्सो। जैसे अंबानी जी को भी अगर लोन चाहिए रिलायंस के डेवलपमेंट के लिए, तो भी वो SBI से ले सकते हैं। तो ब्रॉड बेस्ड है फॉर ऑल सेक्टर्स, किसी को मनाही नहीं है, जो चाहे आ सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, if you want to open a scheduled commercial bank, what is the eligibility? ये इंपॉर्टेंट है। पहले है कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 500 करोड़, आपके पास 500 करोड़ रुपए होने चाहिए,
right? You must have 500 crore rupees. The second thing is promoters integrity and financial soundness also gets evaluated, right? कि जो प्रमोटर हैं, promoters of the company और कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जब हम कैपिटल मार्केट्स पढ़ेंगे हमें समझ आएगा। प्रमोटर की इंटेग्रिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस भी इवेल्युएट की जाती है। दैट ऑफ कोर्स आपके पास पुराना कोई आपकी हिस्ट्री में इंसॉल्वेंसी नहीं होनी चाहिए, बैंक्रप्सी नहीं होनी चाहिए, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तभी आपको ये लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, लाइसेंस के बाद देयर इज आल्सो अ सेकंड कंडीशन, हमने देखा था कि बैंक बनने के लिए लाइसेंस चाहिए आरबीआई का। इफ यू आर willing to adhere to some strict conditions, then you get part of second schedule. तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस हैं, वी डोंट हैव टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल इन दिस, बट ब्रॉडली प्रमोटर की इंटेग्रिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस, 500 करोड़ का कैपिटल, एंड द फोर्थ थिंग हियर इज दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स. You have to convince the RBI. RBI should be convinced and RBI should be able to trust you enough to say कि आप अपने डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करोगे, तभी आपको ये लाइसेंस अवार्ड होगा, राइट? नेक्स्ट, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स? यस. डिपॉजिट्स कौन से? टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट में कौन कौन से थे? फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट. यस. डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन से थे? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बोथ. So they can accept all forms of deposits, time deposit also, demand deposit also. Loan facility, yes, for all sectors they will give loan. उन पे ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस सेक्टर को लोन नहीं दे सकते, वो जिसको चाहे उसको लोन दे सकते हैं, राइट? कैन दे गिव क्रेडिट कार्ड्स? यस. एसबीआई, एक्सिस बैंक, इन सबके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं. क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो, इफ यू लुक एट इट, व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड? इसको समझते हैं जरा. क्रेडिट कार्ड का सिस्टम क्या होता है? इतनी दुनिया क्यों बेचना चाहती है दुनिया को क्रेडिट कार्ड्स? हर जगह क्यों कहते हैं कि सर हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो? व्हाट इज द सिस्टम? आई एम मेकिंग अ पेमेंट फ्रॉम माय क्रेडिट कार्ड. मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी, लेट्स से ₹1000 की. नाउ आई हैव टू सेटल दिस पेमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ. एट द एंड ऑफ द मंथ आई हैव टू सेटल दिस पेमेंट. लेट्स से माय सैलरी कम्स ऑन 30th एंड एंड ऑफ द मंथ की जगह मैंने जो भी लेट्स से दिसंबर में जो भी मैंने पेमेंट्स करी, मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनी कहेगी कि 7th जनवरी को आप इसका बिल पे कर दो. ठीक है, सो नॉट एग्जैक्टली एंड ऑफ द मंथ, लेट्स से पिछले मंथ का एक मंथ बाद मुझे 7 जनवरी को दिसंबर का बिल पे करना है. एंड माय सैलरी फॉर दिसंबर कम्स ऑन 1st जनवरी. 1st जनवरी को मेरी सैलरी आती है, राइट? मेरी सैलरी आएगी, 7th को मैं बिल पे कर दूंगा. बट द पेमेंट्स दैट आई एम मेकिंग इन दिसंबर, मान लो अभी मेरे अकाउंट में देयर आर ₹0. अज्यूम करते हैं दैट नो मनी इज देयर इन माय अकाउंट, राइट? नाउ इफ आई डू पेमेंट यूजिंग दिस, एट दिस टाइम आई एम यूजिंग माय क्रेडिट कार्ड टू डू अ पेमेंट. मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, मेरी सैलरी तो अभी आनी है, राइट? माय सैलरी इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट मंथ. I will get my salary for December on 1st January. I am doing a payment in December. At this moment, my account has ₹0. So the payment I am doing is effectively a loan. Effectively मैंने बैंक से लोन लेके ₹1000 पे कर दिए. अमाउंट छोटा है इसलिए बैंक ने मुझे अलाउ कर दिया. बैंक ने मेरे से कोई कोलैटरल नहीं मांगा. क्रेडिट कार्ड पे कोई कोलैटरल तो सबमिट नहीं करना पड़ता. What is the feature of this loan? It is an unsecured loan. इसमें कोई कोलैटरल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है इस लोन के अगेंस्ट. इट इज अ शॉर्ट टर्म, बिकॉज ये 1 महीने के लिए मिला है. मैंने आज पेमेंट करी, लेट्स से आई डू अ पेमेंट ऑन 28th, आई विल पे बैक ऑन 7th. 7th को क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, मैं पे कर दूंगा, पेमेंट खत्म. दिस इज बेसिकली हाउ क्रेडिट कार्ड्स वर्क. आई एम श्योर आपको ये पता भी होगा. दिस इज नॉर्मल फाइनेंशियल नॉलेज. इवन फॉर दोज हु डिड नॉट नो, आई एम श्योर this you are understanding that credit card is nothing but a short term unsecured loan given by a bank, है ना? अब why are banks so eager to give this loan? बैंक सबको अपना क्रेडिट कार्ड बेचते क्यों रहते हैं कि प्लीज हमारा क्रेडिट कार्ड खरीद लो? Banks are eager to give this loan because if I am unable to pay, if I am unable to pay on 7th January, बैंक कैन नाउ चार्ज एन इंटरेस्ट. अब ये लोन पे इंटरेस्ट शुरू होगा,
राइट। अब लोन पे इंटरेस्ट शुरू होगा अगर मैं पे नहीं कर पाया तो। अगर मैंने पे कर दिया तो कोई बात नहीं, 7 जनवरी को पे कर दिया तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगा, 0% इंटरेस्ट पे शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन मुझे मिल गया। But if I am unable to pay, then bank will charge an interest. So let's say I am only able to pay on 7th February. तो मैं 1 महीना लेट हुआ, ये जितना टाइम में लेट हुआ इस पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एंड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट हियर दैट द बैंक चार्जेस? एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया कि किस लेवल का इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है यहाँ पे? टिल 7 जनवरी आर्यन देयर इज नो इंटरेस्ट। जो डेट थी, फर्स्ट डेट थी, तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस इंटरेस्ट जनरली रेंजेस फ्रॉम 30% ऑनवर्ड्स। 30% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इस पे। सो ह्यूज इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, राइट? 30%, 35, कहीं 25 भी है, डिपेंडिंग ऑन योर कार्ड। सो ह्यूज इंटरेस्ट रेट इज चार्ज्ड। सो व्हाई इज बैंक गिविंग मी क्रेडिट कार्ड? बैंक इज गिविंग मी क्रेडिट कार्ड बिकॉज बैंक वांट्स मी टू डिफॉल्ट। बैंक चाहता है कि मैं पे ना कर पाऊं ऑन टाइम, राइट? तब बैंक मेरे से ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करना शुरू करेगा। दिस इज द पर्पस व्हाई क्रेडिट कार्ड्स आर बीइंग सोल्ड। इफ ज्योति इज आस्किंग इफ पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे तो जो पार्ट रह जाएगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, राइट? बैंक वांट्स मी टू डिफॉल्ट। इन द क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री, पीपल हु पे देयर क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन टाइम, ठीक है? पीपल हु पे देयर क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन टाइम, कि 7 जनवरी को है, 7 जनवरी को ही भर दिया। These people in the industry are called deadbeats. This is the term the credit card industry uses for people like this, deadbeats. Unofficially, of course. ये official term नहीं है, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, just for your understanding. Deadbeats. Deadbeats क्यों? Because bank is not going to make any money off of you if you pay back your loan on time. अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे भर दिया तो बैंक कोई पैसे बनाएगा नहीं। बैंक ने आपको पैसे दिए, आपने बैंक को वापस कर दिए। मुझे 7 जन को 1000 रुपए वापस करने थे, मैंने 7 जन को 1000 रुपए वापस कर दिए। सो यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट ऑफ दोस पीपल हु आर पेइंग बैक देयर बिल्स ऑन टाइम। You make profit of those people who will not pay back their interest on time, who will not pay back their bills on time. From them you will charge huge amount of interest. आप देखो, क्रेडिट कार्ड लेने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड लिया, you will get a benefit like लाउंज की एक्सेस, right? Some reward points. Who is paying for those reward points? Why is bank so happy to give you reward points on credit card? Debit card पे तो नहीं देते वो reward points, credit card पे वो देते हैं। If they give you reward points, you are likely to spend more. आपको लगेगा कि अगर मेरे 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो गए तो मुझे एक आईफोन मिलेगा। You are likely to spend more using your credit card. When you spend more using your credit card, your ability to repay will get lower. When your ability to repay will get lower, there is a chance that you will default. If you default, bank will charge 30% interest rate. Therefore, bank is always happier to give credit cards to you. Always happier to give credit card to you ताकि आप default करो और बैंक के पैसे बने. Is this system clear? Now, if a bank is allowed to give loans, अगर किसी बैंक को लोन देना अलाउड है, तभी उस बैंक को ये अनसिक्योर्ड लोन देना अलाउड होगा और तभी इस बैंक को क्रेडिट कार्ड इशू करना अलाउड होगा, राइट? तो अगर मैं यहां पर अब वापस आऊं और देखूं कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन गिव लोन, देन शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन गिव क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, है ना? इसीलिए क्रेडिट कार्ड सर्विसेज में यहां पर यस है। आगे चलते हैं। Who are their target customers? All sections, सबको टारगेट कर रहे हैं, राइट? ऐसा किसी कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, दे आर टारगेटिंग एवरीवन। एसबीआई का कोई स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर नहीं है। ज्योग्राफिकल फोकस, अर्बन एरियाज, सेमी अर्बन, रूरल एरियाज, सारे एरियाज टारगेट हैं। ऐसा भी नहीं है कोई स्पेसिफिक एरिया वो टारगेट करते हैं, राइट? ऑल एरियाज दे वांट टू सर्व। प्रॉफिट ओरिएंटेशन, कमर्शियल बैंक है तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, ऑफ कोर्स प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, राइट? Cash reserve ratio, will it be implemented? Yes, it will be implemented. Who will implement? RBI will implement.
करंटली इट इज एट 4%। अब जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे मार्च में जिस लेवल पे हुआ उस लेवल को हम याद करके जाएंगे। SLR, statutory liquidity ratio, is this applicable? Yes. How much is it currently? Right now it is at 18%, कभी 20%, कभी 21, कभी 22, इसी रेंज में रहता है। मैक्सिमम कैन बी 40%। पढ़ चुके हैं हम SLR। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इज दिस एप्लीकेबल? यस, ऑफ कोर्स इट इज एप्लीकेबल। कितना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ANBC, ये भी हमने देखा। एग्जाम्पल्स ऑफ सच बैंक, SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, जो भी बड़े बैंक का नाम हमें पता है वो इस एग्जाम्पल में आता है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में तो आई एम गेसिंग देयर विल बी नो डाउट्स, है ना? समझ आ गया? शेड्यूल कमर्शियल बैंक की सारी एंट्रीज समझ आ गई? आर ऑल द एंट्रीज ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक नाउ क्लियर? अब देखो, अब ये जो एंट्रीज हमने पढ़ी हैं, इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे सारे बैंक्स पढ़ लेंगे अगर, तो हमें समझ भी आ जाएगा। देन देयर विल बी नो डाउट। जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक की सारी एंट्रीज पढ़ ली, ऐसे अब सारे बैंक्स की सारी एंट्रीज पढ़ लेते हैं। तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दिख रहा है ये? स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आते हैं, सेम टेबल है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ बैंक सर्विंग स्मॉल बिजनेसेस, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड लो इनकम ग्रुप्स। ऐसा नहीं है कि हमें उससे लोन लेना मना है। इट इज नॉट दैट it is not allowed for me to take a loan from small finance bank. It is, I have an account in a small finance bank because small finance bank give very good interest rate, right? Small finance bank में अगर आप अपना savings account खोलते हो, the savings account that I have in the small finance bank, normally savings account in this kind of bank will give you 3% interest rate, 3 to 4%. Small finance bank can give you 7% interest rate on savings account. मेरे सेविंग्स अकाउंट पे इसमें आई गेट 7% इंटरेस्ट रेट। क्यों दे रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक मुझे इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा? सोचो। और मुझे नहीं, आपको भी, मतलब ऑफ कोर्स इट विल गिव इट टू एवरीवन। क्यों इतना हाई है? बिकॉज द लोन्स हियर आर स्मॉल लोन्स। स्मॉल लोन्स हैव टू बी गिवन मेनली, राइट? स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज टू बी has been made for serving small businesses, unorganized sector, low income groups. इन लोगों को लोन देना है। Obviously, if you give loans to low income groups, अगर आप एक low income group household को लोन देते हो, the risk is higher or not? The risk of this loan is higher. The chance of low income group people repaying loans versus high income group repaying loans, it's always easier to understand that high income group will have a greater chance of repayment. ये हमने देखा भी था marginal utility curve बना के, if you remember. Since the risk is high, the bank will lend at a high interest rate. If bank will lend at a high interest rate, bank will give me a higher interest rate on savings also. Otherwise, why will I put my money in a small finance bank? मैं डालूंगा ही क्यों स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा? मैं HDFC में डालूंगा या एक्सिस में या SBI में या ICICI में। मैं इस बैंक को पैसा दे क्यों रहा हूं? मैं इसीलिए दे रहा हूं बिकॉज they have a higher interest rate of lending and they give me a higher interest rate on savings, right? So there is also a risk associated with my money here. If the loan does not come back, I will also not get enough money. So I have a risk also here. So I will not put too much money here. Maybe I can put 10% of my money here so that it earns good interest. ठीक है? Now, what act will they be governed by? अब यहां पर obviously you can write, आपका कई लोग डाउट पूछ रहे थे, आप यहां पर कंपनीज एक्ट भी लिख सकते हो। कंपनीज एक्ट तो गवर्न करेगी ना, हमने देखा है कि बैंक्स आर आल्सो कंपनीज, तो कंपनीज एक्ट से तो गवर्न होंगे ही। They will also be governed, small finance bank will also get governed by Banking Regulation Act and whatever guidelines RBI will issue. ठीक है? अब who is the regulator of small finance bank? Reserve Bank of India. Regulator तो सेम रहेगा, again RBI is the regulator.
है ना, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बैंक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बैंक, और रादर व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस बैंक वाज क्रिएटेड। प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर अंडरसर्व्ड ग्रुप्स। ये हमने देखा था कि स्मॉल लोन्स में जो ग्रुप्स अंडरसर्व्ड हैं उनके लिए ये बैंक खोला गया है, राइट। अब व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आपको खोलना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये देखते हैं। पहला, पेड अप कैपिटल ऑफ 200 करोड़। व्हाट इज पेड अप कैपिटल एंड व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, वी विल सी व्हेन वी डू कैपिटल मार्केट्स, राइट। पेड अप कैपिटल एंड ऑथराइज्ड कैपिटल आर टू टर्म्स, वो देखते हैं। आरबीआई एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। खत्म करने दो यार, एक बार प्लीज खत्म करने दो, उसके बाद डाउट्स पूछ लेना, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होता हूं, है ना। प्लीज खत्म करने दो स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर डाउट पूछना, ठीक है। पेड अप कैपिटल ऑफ 200 करोड़, फोकस ऑन अंडरसर्व्ड सेक्शंस। ये पहला आपका क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का कि आपके पास 200 करोड़ होने चाहिए। सो दी रिक्वायरमेंट इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वाज 500 करोड़। हियर द रिक्वायरमेंट इज लेस, 200 करोड़। कम पैसे में, अगर आप थोड़े से कम अमीर हो तो भी चल जाएगा, 200 करोड़ सबके पास होते हैं, 200 करोड़ में आप खोल सकते हो स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाउ व्हाट इज द अदर क्राइटेरिया, यू मस्ट बी अ रेजिडेंट इंडियन विद दिस कैपिटल। आप एक रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए विद दिस कैपिटल, यू मस्ट बी रिजाइडिंग इन इंडिया एंड हैविंग अ कैपिटल ऑफ 200 करोड़ रुपीस। देन आगे पढ़ो, लोकल एरिया बैंक्स, ये क्या होते हैं हम देखेंगे। एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस एंटिटीज विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग। तो क्या हुआ यहां पर, अगर हम देखा जाए स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए क्या चाहिए, पहले तो चंद कुछ पैसे चाहिए, 200 करोड़ रुपए। दूसरा, यू मस्ट बी अ रेजिडेंट इंडियन। तीसरा, यू कैन ईदर बी अ लोकल एरिया बैंक, ये क्या होता है हम आज ही देखेंगे, या यू कैन बी एन एनबीएफसी, और यू कैन बी अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास ये तीनों चीजें अग्रीड हैं तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हो, राइट। माइक्रो फाइनेंस हम पहले देख चुके हैं, बट माइक्रो फाइनेंस कंपनी हमने पहले नहीं देखा है, वो हम देखेंगे अभी। इज दिस क्लियर, एलिजिबिलिटी क्लियर है, 200 करोड़ कैपिटल होना चाहिए, रेजिडेंट इंडियन है, और ये तीन चीजें, इन तीनों में से कोई एक आप होने चाहिए जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब आगे देखते हैं, डू यू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। यस, डिपॉजिट आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हो, टाइम डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हो। लोन फैसिलिटी, यस, आप लोन फैसिलिटी दे तो सकते हो, लोन्स यू कैन गिव, बट योर पर्पस वाज टू गिव लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम ग्रुप्स। यहां पहला डिफरेंस आएगा एज कंपेयर टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अब तक तो सभी सेम था, अब तक सब सेम था, अब डिफरेंस आएगा। यहां पर क्या क्राइटेरिया है, कल हमने देखा था दैट 50% लोन्स हैव टू बी लेस देन 1 लाख रुपीज, जो मैंने लेकिन आपको कहा था कि ये जो फिगर है दिस इज नॉट द एक्यूरेट फिगर। द एक्यूरेट फिगर इज दिस, दैट 50% ऑफ योर लोन्स must be lesser than 25 lakhs. This is also effectively a very small loan. हमें ये फिगर बड़ी लग सकती है, बट दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल लोन। 25 लाख से कम के लोन एसबीआई फॉर एग्जाम्पल बहुत कम देता होगा। एसबीआई मस्ट बी गिविंग लोन्स above the value of 2 crore rupees. So 50% of your loans have to be less than 25 lakh. This was the only reason small finance banks were opened. तो ये पहली चीज है। अब आपको लोन देना अलाउड है तो आपको क्रेडिट कार्ड देना अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। सेम थिंग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड लो इनकम ग्रुप्स, दीज आर योर टारगेट कस्टमर्स। आप टारगेट इनको कर रहे हो, राइट। अब देखो सेकेंड डिफरेंस आएगा यहां, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। You will be present in urban areas and rural areas, but you must have 25% branches in unbanked rural areas. आपको 25% अपनी ब्रांचेस उन एरियाज में खोलनी पड़ेंगी, रूरल एरियाज में, जहां पर बैंकिंग नहीं है अभी, जहां बैंक्स अभी नहीं पहुंचे। द मेन पर्पस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक वॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसीलिए ये क्राइटेरिया भी रखा, 25% ब्रांचेस इन अनबैंक्ड रूरल एरियाज। प्रॉफिट ओरिएंटेशन, ऑफ कोर्स
प्रॉफिट ओरिएंटेशन तो है ही, बट देर इज ऑल्सो अ डेवलपमेंटल फोकस, देर इज अ स्लाइट डिफरेंस। प्रॉफिट ओरिएंटेड तो ये भी है। सीआरआर इंप्लीमेंटिंग, यस, एंड सेम एज शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई एक्ट भी लग रही है ना इन पे, अगर सीआरआर लग रहा है तो आरबीआई एक्ट भी लग रही है, सिंपल एज बिफोर। सीआरआर इज एप्लीकेबल, एसएलआर इज ऑल्सो एप्लीकेबल, बट आरबीआई कैन समटाइम्स गिव डिफरेंट डायरेक्टिव्स फॉर दिस। आरबीआई कह सकता है कि एसएलआर फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक इज 18%, एसएलआर फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 25%। एसएलआर भी लग रहा है, सीआरआर भी लग रहा है। सीआरआर जो लगेगा वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक से सेम लगेगा। एसएलआर कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली ऑल्सो, ठीक है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स, ये तीसरा डिफरेंस है। वहां पर क्या था, 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट वाज पीएसएल, यहां पर हमने इसको 75% कर दिया। ये हमने कल डिस्कस किया था कि अगर एक बैंक खोला ही इस पर्पज से गया है कि वो स्मॉल लोन्स दे, उन सेक्टर्स को दे जिनको वैसे लोन्स नहीं मिलते, तो 75% देना बनता है। नाउ some other important details, this bank can evolve into scheduled commercial bank after 5 years। आपने आज स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला, आप 5 साल तक स्मॉल फाइनेंस बैंक चलाओ, उसके बाद इफ आपकी नेटवर्थ 1000 करोड़ हो गई है एंड आरबीआई आपके रिकॉर्ड से सेटिस्फाइड है, तब आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक का लाइसेंस भी ले सकते हो। आपने आज स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला, 5 साल तक चलाओ, मिनिमम 1000 करोड़ की नेटवर्थ करो, देन इफ आरबीआई इज सेटिस्फाइड विद योर ट्रैक रिकॉर्ड, यू कैन अप्लाई टू बी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ऑफ कोर्स यू विल वांट टू अप्लाई, आप पे पीएसएल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, आप बड़े लोन्स भी दे पाओगे, आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, बट आरबीआई हैज टू बी सेटिस्फाइड दैट यू हैव डन योर जॉब सक्सेसफुली। इसका एग्जांपल देखते हैं, इसकी एड भी बहुत आती है आजकल। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपने शायद नाम भी सुना हो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहले देयर यूज्ड टू बी अ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक दैट हैज नाउ बिकम शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज बिकम शेड्यूल कमर्शियल बैंक। 5 साल स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई थिंक 7 years they ran as small finance bank, then they have become now scheduled commercial bank। अब बताओ, now is there any different doubt in small finance bank? अब हमने सारी चीजें देख ली स्मॉल फाइनेंस बैंक की, अब कोई डाउट है एसएफबी में तो बताओ, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नाउ इज इट फाइन? सिटीजन विद कैपिटल रेजिडिंग इन इंडिया नहीं है, इंडियन रेजिडेंट विद कैपिटल है। देखो ऑब्वियसली एक डाउट आपका कंपनीज एक्ट का है, ऑल बैंक्स हैव टू रजिस्टर एज कंपनीज। अगर आप कंपनीज एक्ट वाला मैं डाउट आपका क्लियर कर देता हूं। देखो ये लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस। बैंक हो, एडटेक कंपनी हो, किसी भी तरह की कोई भी कंपनी हो, इसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर तो करना ही पड़ता है। इवन सारथी आईएएस इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कहां है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज देयर इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कोई भी कंपनी होगी उस पर कंपनीज एक्ट तो लगेगी, राइट? कोई भी कंपनी होगी उस पर कंपनीज एक्ट लगेगी, राइट? देखो आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन, हमें बाल की खाल नहीं निकालनी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है? वी यू अंडरस्टैंड, कोई भी कंपनी होगी, इवन इस सारथी गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, यस वी आर गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, राइट? इज एनी कंपनी इन द वर्ल्ड जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, इज गूगल गवर्न्ड? यस। इज माइक्रोसॉफ्ट गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट? यस। एनी कंपनी registered in India is governed by the Companies Act. Okay. Now, small finance bank में हमने क्या देखा? डेफिनेशन देखी, गवर्निंग एक्ट देखी। ऑफ कोर्स आरबीआई एक्ट विल आल्सो गेट बी एप्लीकेबल, राइट? गवर्निंग एक्ट में आरबीआई एक्ट आल्सो गेट्स
एप्लीकेबल। मैंने यहां आरबीआई गाइडलाइंस क्यों लिखा है स्पेसिफिकली? व्हाई हैव आई रिटन दिस? आई हैव रिटन दिस स्पेसिफिकली बिकॉज आपको ये याद रहे कि एसएलआर में आरबीआई डायरेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, राइट? दिस डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर। तो यहां पर कौन कौन से की डिफरेंसेस आए स्मॉल फाइनेंस बैंक में? व्हाट वर द की डिफरेंसेस? चलो आई वांट यू टू राइट इट डाउन, नहीं देखते हम, राइट डाउन व्हाट वर द की डिफरेंसेस फ्रॉम शेड्यूल कमर्शियल बैंक। कौन कौन से डिफरेंसेस आए? मैं याद करता हूं। पहला डिफरेंस आया पेड अप कैपिटल का, फ्रॉम 200 इट बिकेम 200 करोड़, इट वाज 500 करोड़, एक ये चीज आई। दूसरा डिफरेंस क्या आया? लोन प्रोफाइल में डिफरेंस आया। तीसरा डिफरेंस कहां आया? पीएसएल रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस आया। चौथा रिक्वायरमेंट डिफरेंस कहां आया? बैंकिंग ब्रांचेस में डिफरेंस आया कि आप ब्रांचेस आपको कहां खोलनी है। एंड पांचवा एवोल्यूशन का डिफरेंस आया कि आप 5 साल बाद शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन सकते हो। ये 5 डिफरेंसेस आए। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, है ना? अब आई होप एसएफबी क्लियर है। एसएफबी क्लियर हुआ? क्या क्या डिफरेंसेस आए, क्या क्या डिफरेंस थे? इज इट क्लियर? ये अप्रोच ठीक लग रही है? दिस अप्रोच इज गुड, यू फाइंड दिस डिसेंट? क्योंकि अब कोई डाउट बचना नहीं चाहिए इसके बाद, है ना? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोग पॉलिटी में भी कुछ चीजें पढ़ोगे इसी टाइप की, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, है ना? वहां पर भी इसी टाइप के टेबल्स बनाना, ठीक है? एक पूरा सब्जेक्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को जब आप लोग मेरे साथ जीएस3 पढ़ोगे मेंस के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के पूरे सब्जेक्ट को, पूरा सब्जेक्ट, जितने आज तक क्वेश्चन आए, जितने आगे आ सकते हैं, मैंने ऐसा ही एक टेबल बना के 19 पेज में खत्म कर दिया था पूरे सब्जेक्ट को, ठीक है? तो यूज दिस अप्रोच, इसमें कभी आपके डाउट्स क्रिएट होने के चांस ही नहीं है, बिकॉज इट्स इजीली कंपेरेबल, ठीक है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट बैंक पे। नेक्स्ट बैंक कौन सा है? पेमेंट बैंक। अब पेमेंट बैंक किस टाइप का बैंक है? इट इज प्रोवाइडिंग लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज and it is focusing on deposits and payments. It is not focusing on, किस चीज पे फोकस नहीं कर रहा वो? It is not focusing on lending. कौन कौन सी एक्ट लगेगी? आरबीआई एक्ट भी लगेगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगेगी, आरबीआई गाइडलाइंस भी लगेंगी। अब यहां आरबीआई गाइडलाइंस क्यों लिखा है अभी आपको समझ आएगा। हु इज द रेगुलेटर? आरबीआई इज द रेगुलेटर। काम क्या था इनका? फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू पेमेंट्स एंड डिपॉजिट्स। स्मॉल पेमेंट्स लेंगे, स्मॉल डिपॉजिट्स लेंगे, ताकि पेमेंट्स में ईज हो सके, उसके लिए काम करा जा रहा है। क्या रिक्वायरमेंट है? मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़, रेजिडेंट इंडियंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज, सुपरमार्केट चेन्स, कोऑपरेटिव्स, कंपनीज कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट इंडियंस विद एडिक्वेट कैपिटल रिसोर्सेज, ये सब लोग पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। इसका समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। एनबीएफसी तो हमें देखेंगे। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशुअर्स, इस टाइप के कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे अमेजोन का एग्जांपल लो, राइट? अमेजोन क्या करता है? आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट देता है, जैसे कि मैं अमेजोन को 10,000 रुपीज दूं और मैं कहूं कि ये एक गिफ्ट कार्ड मुझे दे दो, ये गिफ्ट कार्ड अब मैं आपको दे दूं, राइट? मैं आपको गिफ्ट कार्ड दे दूं, नाउ यू कैन स्पेंड इट। दिस गिफ्ट कार्ड विल बिकम अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इससे पेमेंट हो रही है, एंड आई हैव प्रीपेड इट, मैं पहले से पे कर चुका हूं इसके लिए, सो इट इज अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि एयरटेल, पेटीएम वॉलेट की बात करते हैं। पेटीएम वॉलेट क्या है? आप अपने पेटीएम वॉलेट से पैसे स्पेंड कर सकते हो। पहले मैंने अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में पैसे डाले, आई हैव प्रीपेड 10,000 रुपीज इन माई पेटीएम वॉलेट, नाउ आई कैन यूज इट टू स्पेंड मनी। बट मैं तो पहले से पे कर चुका ना, वॉलेट में पैसे डाल चुका ना। अगर आप उस वॉलेट को एक कार्ड की तरह देख लो, इट इज द सेम थिंग। तभी पेटीएम को अपॉर्चुनिटी मिली टू ओपन पेटीएम पेमेंट्स बैंक। यहां पर मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज लिखा है, तभी एयरटेल वाज एबल टू ओपन इट्स ओन पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक हमने कल इसका एग्जांपल भी देखा था।
तो पेमेंट बैंक में क्या क्राइटेरिया है, अब दोबारा देखते हैं। 100 करोड़ कैपिटल सबसे पहला, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट और कम हो गई। अब तो इवन मतलब गरीब लोग भी खोल सकते हैं। 100 करोड़ कैपिटल चाहिए, ज्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 100 करोड़ कैपिटल में बात बन जाएगी, है ना। जस्ट लुक एट हाउ आई वुड से एक्सक्लूजनरी बैंकिंग। टू ओपन अ बैंक यू रिक्वायर 100 crore rupees, minimum 100 crore rupees. Just look at how exclusionary banking is. That is why financial inclusion is difficult. क्योंकि बैंक खोलने वाले को मिनिमम 100 करोड़ रुपए होने चाहिए, और ये वो बैंक है जिसके पास 100 करोड़ रुपए हैं। ये वो बैंक है जिससे हम लेंडिंग भी अलाउ नहीं कर रहे, राइट? इससे हम लेंडिंग भी अलाउ नहीं कर रहे हैं इस बैंक से। सो जस्ट अंडरस्टैंड हाउ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। कल हम पढ़ रहे थे ना फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रॉब्लम, दैट एवरीवन मस्ट गेट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वगैरह। वो प्रॉब्लम इसीलिए है बिकॉज ओपनिंग अ बैंक इज समथिंग दैट ओनली पीपल एट द वेरी टॉप ऑफ आवर सोसाइटी कैन डू। तो क्या रिक्वायरमेंट है? 100 करोड़ कैपिटल, रेजिडेंट इंडियन हो सकते हो, या एनबीएफसी हो सकते हो, या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशुअर हो सकते हो, या मोबाइल टेलीकॉम कंपनी हो सकते हो, सुपरमार्केट चेन हो सकते हो, कोऑपरेटिव्स हो सकते हो, या फिर कोई कंपनी कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट इंडियंस हो सकते हो। ये सारी चीजें जहां पे भी कॉमर्स लगे हुए, इनमें से आप कुछ भी हो सकते हो, और आपके पास इतने कैपिटल रिसोर्सेज हैं, you have adequate capital resources, then you can open a payments bank. अब ये पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, ये हम कैपिटल मार्केट्स में डिटेल में देखेंगे जब शेयर मार्केट पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट चीज है, डज इट एक्सेप्ट, सेम टेबल चल रहा है, डज इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स? यस, इट कैन एक्सेप्ट सेविंग्स डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट्स लिमिटेड टू ₹2 लाख पर कस्टमर। याद करो पेमेंट बैंक में हमने क्या देखा था, स्मॉल डिपॉजिट्स, तो 2 लाख से ज्यादा की डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट एक्सेप्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कैन नॉट एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआईज कैन नॉट डिपॉजिट मनी हियर, फिक्स्ड डिपॉजिट्स also will not be accepted, and only demand deposits less than 2 lakh rupees will be accepted. यही हमने कल देखा था। Now, can it give loans? No. Loans? No. If loans no, then credit cards also no. Loans भी no, credit card भी no, है ना? Now, who are the target customers? Individuals and small businesses for basic banking. हमने देखा था इनका मेन काम क्या था, पैसे ट्रांसफर करना, वेजेस ट्रांसफर करना। स्मॉल बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स को बेसिक बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसफर उसके लिए था। व्हाट आर द टारगेट एरियाज या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स? अर्बन एंड रूरल, they must have a focus on unbanked areas. So 25% of their access points must be in rural areas. Access points का क्या मतलब? जैसे आप पेटीएम एक्सेस करते हो, your access point of Paytm is your phone. One other access point of Paytm is, or Paytm Payments Bank is, that you can use the QR code for scanning and paying. अब वहां पे let's say you want to open a पेटीएम पेमेंट्स बैंक डिपॉजिट, आप पेमेंट्स बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हो इन द पेटीएम पेमेंट्स बैंक। एक तरीका है अपना मोबाइल फोन यूज करो, बट देयर आर रूरल एरियाज इन द कंट्री वेयर दीज मोबाइल फोन्स आर नॉट दैट पेनिट्रेटेड येट। वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, या यहां पर सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वहां पर भी आपको एक्सेस पॉइंट्स देने पड़ेंगे ताकि वो लोग भी एक्सेस कर सके। कैसे देते हैं मैं आज ही देखेंगे। समथिंग कॉल्ड बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एंड बैंक मित्र, वी विल सी दैट टुडे ओनली. But 25% access points must be in rural areas. Now, what is the profit model here? Of course, they are profit oriented. ये banks भी profit oriented जरूर हैं, but हमने कल क्या देखा था? These cannot give loans. तो यहां से तो ये कोई इंटरेस्ट ऑन करेंगे नहीं। 100% of their money they are putting either in some government securities or gold. So they will do less amount of profit. They will do less amount of profit. Why? Because they cannot give loans. 100% पैसा यहां जाएगा, but on the other side, they don't have to pay interest on deposits also.
So the problem is solved. Now, CRR. Is cash reserve ratio applicable on payments bank? Yes. Same as scheduled commercial bank, it is applicable. Is SLR applicable? Yes. But it will vary as per RBI directive. RBI जितना SLR कहेगा उतना होगा. They are required to invest minimum 75% of their demand deposit balance in SLR eligible government securities या treasury bills. And just one second. Hold maximum 25% in current and fixed deposits with other scheduled commercial banks for operating purposes and liquidity management. समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 100 रुपीज की टोटल डिपॉजिट्स मिली. इसमें से पेटीएम पेमेंट्स बैंक कैन से 75 rupees have to go into SLR eligible government securities. 25% can be in either current account or time deposit with another scheduled commercial bank. तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पार्टनर कर ले, लेट्स से एक्सिस बैंक को 100 रुपीज मिले, 75 रुपीज डाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, 25 रुपीज डाले एक्सिस बैंक के करंट अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में एज अ मिक्सचर. सो लेट्स रीड दिस लाइन अगेन नाउ टू अंडरस्टैंड. Maximum 25% in current and time or fixed deposits with other scheduled commercial bank for operational purposes and liquidity management. Is this clear? 100 rupees मिले, 75 SLR eligible government securities, 25 डाले कहां? या तो करंट अकाउंट में या किसी टाइम डिपॉजिट में. और कहां करेंगे ये डिपॉजिट? किसी और शेड्यूल कमर्शियल बैंक में. Is this clear? Now SLR requirement is clear, CRR requirement is clear. CRR तो है ही, CRR requirement तो है ही, लिखा है ना यहां पे CRR is applicable same as scheduled commercial bank. यहां पर एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट है, जो बचेगा उसमें से वो SLR में जाएगा, 75% of that in SLR, बाकी यहां. Now will priority sector lending norms be applicable on lending norms be applicable on them? Will PSL norms be applicable on them? Yes or no? Of course not, because they can't lend. Now other details. If RBI is satisfied with your record, in 5 years you can evolve into small finance bank. ये लास्ट डिटेल है. आपने पेमेंट्स बैंक आज खोला, 5 years तक रन किया, अब आरबीआई आपके रिकॉर्ड से सेटिस्फाइड है तो यू कैन अप्लाई टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक. आप स्मॉल फाइनेंस बैंक रन करो फॉर 5 years, देन आरबीआई सेटिस्फाइड विद योर रिकॉर्ड, यू कैन बिकम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. इसका एग्जांपल पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक. ठीक है, अब बताओ पेमेंट्स बैंक में कोई डाउट? इसी अप्रोच से फॉलो करेंगे, इस टेबल से सारे बैंक्स क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट बचेगा नहीं. कोई पेमेंट्स बैंक में डाउट? हाउ कैन जियो पेमेंट बैंक बी प्रोवाइडिंग होम लोन? अभी बताता हूं. पढ़ेंगे उसको, में पढ़ेंगे पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक में क्या फर्क होता है. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो पेमेंट बैंक है वो. अब एक क्वेश्चन था, एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वो मैं जवाब देता हूं उसका. द क्वेश्चन वाज कि जियो फाइनेंस, जियो का जो पेमेंट्स बैंक है वो होम लोन दे रहा है. इट इज गिविंग होम लोन्स. अब ये कैसे हो रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए, राइट? ये तो दिस शुड नॉट बी द इशू.
ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जियो हैज पार्टनर्ड विद सम अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। लेट्स से जियो हैज पार्टनर्ड विद आईसीसीआई। आईसीसीआई डज नॉट हैव हाई रीच इन इंडिया। आप में से कितनों के फोन्स में आईसीसीआई की एप्लीकेशन है? बहुत कम। बट ऑलमोस्ट सबके फोन्स में कोई ना कोई जियो की एप्लीकेशन जरूर है। जियो हैज अ ह्यूज रीच, आईसीसीआई डज नॉट हैव दैट रीच। आईसीसीआई एंड जियो डिड अ पार्टनरशिप। द लोन इज कमिंग फ्रॉम आईसीसीआई. Jio Payments Bank is merely acting as a intermediary here. आपको लग रहा है लोन जियो पेमेंट बैंक से आ रहा है, बट लोन इज कमिंग फ्रॉम दिस बैंक. ये पार्टनरशिप है. जियो पेमेंट्स बैंक को लोन देना अलाउड नहीं है. थ्रू दिस पार्टनरशिप दिस लोन इज कमिंग टू यू. Why does Jio benefit? Jio will claim that some amount of Jio will claim that you give us some amount of interest. जियो की अर्निंग होगी, आईसीसीआई की रीच बढ़ जाएगी. ICCI's reach will increase. Jio will say you give us some amount of interest. But actually loan is coming from a scheduled commercial bank, whichever Jio has partnered with. I don't know which one they have partnered with. Whichever they have partnered with, this is the idea. Right? Whichever bank they have partnered with. समझ आ गई बात? अब so now any other doubt in payments bank? फिर हम regional rural bank पे जाते हैं. How can they satisfy demand deposits they put in SLR and other bank? आप SLR में डालोगे तो कुछ अर्निंग होगी ना. If you put in SLR, you will get some earning. And 25% करंट अकाउंट में रखा है फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, और आप सीआरआर भी मेंटेन कर रहे हो. Who becomes accountable? इसमें क्या डिफरेंस है? जो सेम आपकी किसी और डिपॉजिट में कोई अकाउंटेबल है, वही अकाउंटेबल है. सेम लॉजिक है. सीआरआर भी फॉलो कर रहे हैं, एसएलआर भी फॉलो कर रहे हैं, और थोड़ा सा पैसा अपने पास भी रखा हुआ है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक का क्या इशू हुआ? और वॉलेट्स एंड पेमेंट बैंक आर डिफरेंट थिंग्स. वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास. ये डिफरेंस वी विल अंडरस्टैंड व्हेन वी स्टडी समथिंग कॉल्ड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट. जब हम ये एक्ट पढ़ेंगे तब हमें ये डिफरेंस समझ आएगा. दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. इसको अभी हटा देते हैं. नाउ नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक्स. रीजनल रूरल बैंक इज अ बैंक फोकसिंग ऑन रूरल, डेफिनेशन है ये, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग. ओके. नाउ रीजनल रूरल बैंक्स आर सेटअप, दे आर सेटअप अंडर, इस बैंक को सेटअप किया जाता है अंडर रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976. इस एक्ट के अंडर इनको सेटअप किया जाता है. एक नरसिम्हम कमेटी बनी थी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन 1970. उन्होंने रेकमेंड किया था रीजनल रूरल बैंक्स को. हम समझते हैं रीजनल रूरल बैंक्स क्यों आए, बिकॉज देयर वाज नॉट इनफ फाइनेंशियल इंक्लूजन हैपनिंग इन द रूरल एरियाज. इस नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन पे रीजनल रूरल बैंक एक्ट पास हुई 1976 में. उस एक्ट के बेसिस पे रीजनल रूरल बैंक्स बनते हैं. इन पे फिर भी आरबीआई की गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं, इन्हें भी लाइसेंस लेना पड़ता है. वो सारी चीजें तो हैं ही, वो अभी समझ आ जाएगा हमें. बट दे आर सेट अप अंडर दिस एक्ट. रीजनल रूरल बैंक इज सेट अप अंडर आरआरबी एक्ट. सारी रेगुलेशन अप्लाई होती हैं, वो हम अभी देखेंगे. नाउ हु इज द रेगुलेटर? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रेगुलेटर इज आरबीआई. अल्टीमेट रेगुलेटर ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज आरबीआई. आरबीआई ने अपना काम, आरबीआई को बहुत ज्यादा काम है, आरबीआई हैज टू मेनी थिंग्स टू डू. आरबीआई हैज डेलीगेटेड इट्स फंक्शन टू नाबार्ड. नाबार्ड क्या होता है ये भी आज ही देखेंगे. आरबीआई ने अपना फंक्शन नाबार्ड को डेलीगेट कर दिया है. राइट? द रेगुलेटर इज आरबीआई ओनली. इफ आस्क्ड हु इज द रेगुलेटर of regional rural banks, ultimate regulator of regional rural banks, it is RBI. Who is performing the function of regulation? Who is performing this function of regulation? NABARD is performing this function of regulation. ठीक है, आगे देखते हैं.
इनका मेन पर्पस क्या है? सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर. दिस इज व्हाई दे वर सेट अप. नाउ अब हमने कल एक चीज पढ़ी थी, इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स. हमने क्या पढ़ा था? 50% was with central government, 15% state government, 35% with the sponsor bank. यही पढ़ा था. This is what is written in RRB Act 1976. In 2015, RRB Act was amended. After the amendment to the RRB Act in 2015, it was said that these banks can accept 49% private capital also. अब ये हमें तब समझ आएगा जब हम कैपिटल मार्केट्स पढ़ेंगे. दिस इज 49, ओके, 49%. आप अपने शेयर्स, यही शेयर पैटर्न है, आप 49% शेयर्स बेच भी सकते हो टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स. आप क्यों करोगे ये? वाई विल यू सेल योर इक्विटी? ऑब्वियसली यू विल सेल योर इक्विटी टू रेज मनी. गवर्नमेंट सॉ दैट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इज नॉट गुड. इनकी हालत ठीक नहीं थी. द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज नॉट गुड. सो इन 2015 दिस अमेंडमेंट वाज डन. दिस अमेंडमेंट वाज डन सेइंग दैट आपका ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप 49% शेयर्स, और किसके 49%? किसी के भी. ऐसे नहीं डिसाइड होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने परसेंट, इसके इतने परसेंट, इसके इतने परसेंट बिक सकते हैं. एनी ऑफ दीज 49% शेयर्स यू सेल एंड यू रेज सम मनी, you are allowed to do that. This is now the new shareholding pattern in regional rural banks. अब ये शेयर सेल करके पैसे कैसे रेज किए जाते हैं, this we will understand in capital markets. थोड़े interconnected topics हैं, but once we understand capital markets, this will not be a problem. ठीक है? Is this clear? This is the new shareholding pattern after this amendment to the RRB Act. तो आज की डेट में क्या shareholder pattern है? Union, state and sponsor bank will together hold 51%. Private investors will hold 49%. Is this clear? समझ आई ये बात? ये वाली बात क्लियर है बस, शेयर होल्डिंग वाली. ओके, नाउ नेक्स्ट चीज क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्टेंस. डज आरआरबी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स? यस. कौन सी डिपॉजिट्स? टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट, दोनों. Now, can it give loans? Yes. Its loans are focused on rural and agricultural needs. Right? Focused on rural and agricultural needs. Now, next thing is credit card services. यहां पर एक एक्सेप्शन है. Their credit card services are fairly limited. Fairly limited credit card services हैं. They can only do this in collaboration with sponsor bank or other bank. Why? Because this is not their purpose. इनका पर्पस क्या है? इनका मेन पर्पस is to issue rural loans. Credit card does not fit into the purposes for which a regional rural bank was envisaged. So they have credit card giving ability, but it is fairly limited. Now, who are they targeting? Farmers, rural population and weaker sections. What is their geographical distribution? They are mainly in rural areas. Do they have a profit motive? Yes, they have a profit motive, but development is also the motive. One of the motives of this bank is to have financial inclusion in rural areas. The other motive is profit. Then CRR, yes, it is applicable. And it is varied by RBI directive. अब ये ध्यान से देखना. Look at this carefully. यहां पर क्या लिखा है? This was Payments Bank. Payments Bank में CRR is applicable, but same as Scheduled Commercial Bank. अगर Scheduled Commercial Bank का 4% है तो Payments Bank का भी 4% है. But that does not mean कि RRB का भी 4% ही है. RBI can say
CRR for scheduled commercial bank 4%, for RRB 7%. ये इशू कर सकता है आरबीआई. इफ आरबीआई wants, आरबीआई can do this. Similarly, SLR applicable but varies as per RBI directive. Now, priority sector lending 75% of ANBC. Of course, इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है लोन्स देना रूरल एरियाज में, तो 75% है, हाई है PSL नॉर्म्स. देन नेक्स्ट थिंग, लोन इंटरेस्ट रेट्स कैन नॉट बी मोर देन प्रिवेलिंग लेंडिंग रेट्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन दैट एरिया. दिस इज इंपॉर्टेंट. आप एक रीजनल रूरल बैंक हो इन अ रूरल एरिया, यहां पर एक कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक पे अभी आएंगे. इस कोऑपरेटिव बैंक का लोन लेंडिंग रेट 10% है. इट इज गिविंग लेंडिंग रेट एट 10%. यू कैन नॉट गिव लोन्स एट 12%. You have to be lower or equal to the cooperative banks of that area. जो उस एरिया के कोऑपरेटिव बैंक का लेंडिंग रेट है उसी के बराबर आपको रखना पड़ेगा. ये क्यों है? Because the purpose of this bank, remember the logic why this bank is opened. This bank is open to provide rural loans. Now, examples of this bank: प्रथम बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक. जिस भी बैंक के जनरली पीछे आप ग्रामीण बैंक सुनते हो, यू मस्ट हैव हर्ड मेनी बैंक्स, द नेम्स सच एज एक्स ग्रामीण बैंक, वाई ग्रामीण बैंक. These banks are generally regional rural banks. This is generally the case. They are generally regional rural banks. अब regional rural bank के conditions समझ आए हमें? Are the conditions of RRBs now clear to us? अरे मैंने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं पढ़ाया ना अभी. वी विल कम टू किसान क्रेडिट कार्ड. किसान क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट की एक स्कीम है. आनंद, मैंने अभी DICGC पढ़ाया है क्या? Priyanshu, start with the economics lecture. It says class 1. Start with class 1, then you'll understand. Now, अब आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स पे. लेट्स कम टू कोऑपरेटिव बैंक्स. अभी तक क्लियर है? आपस में कंपैरिजन भी कर पा रहे हो? हाउ कैन RRB बी पब्लिक एंड प्राइवेट? उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हमें पता है ना. 51% ऑफ शेयर्स ऑफ एन RRB विल बी हेल्ड बाय central government, union government, state government, and a sponsor bank. Then how can it be private? Right? The only factor is you will not understand doubts with regards to paid up capital and authorized capital and shareholding till I teach you capital markets. Obviously, it's not possible to give all the information together. We will learn sequentially only. This is my guarantee that once I teach you capital markets, then these doubts will go away. Whether it is private or not, whether it is public or not, है ना. अभी आप ये देख सकते हो, इसका शेयर होल्डिंग एक पैटर्न है. If there is a shareholding pattern, there will obviously be a minimum paid up capital requirement. We will come to that only when you learn this. जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पढ़ लेंगे तभी हम करेंगे. स्पॉन्सर बैंक मैंने कल पढ़ाया था, दिस आई विल नॉट रिपीट. स्पॉन्सर बैंक मैंने कल पढ़ाया था, कल की क्लास में डिटेल में था. ठीक है? Is this clear? Now, let's come to cooperative banks now. Banks functioning as cooperatives to serve specific communities. Cooperatives का कल हमने लॉजिक देखा था. That profit is not my orientation. Profit is not what I'm trying to do. My purpose is cooperation. Now, who regulates and what acts are applicable? ये जरा समझो. देखो,
there can be various type of cooperative banks. Cooperative banks can be of various types. They can be one, single state cooperative banks. They can be two, multi-state cooperative banks. Cooperative banks can also be rural cooperative bank and urban cooperative bank. है ना? Is this clear? ये हमने कल पढ़ा था. अब who regulates what? किसको कौन रेगुलेट करता है इन दिस केस? ठीक है. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई. रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ स्टेट cooperative society, state registrar of cooperative societies. Single state cooperative banks are under the regulation of state registrar of cooperative societies. This is slightly confusing और इस पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में पहले, इसी एग्जैक्ट टेबल से क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में पहले, इसलिए वी आर गोइंग इनटू डिटेल. आपने सुना होगा देयर वाज दिस केस पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक में एक स्कैम हुआ था. How many of you have heard about it? 2020, I think that scam happened. There was a scam in PMC Bank. After that scam happened, this regulation was changed. So, the Banking Regulation Act was amended. Then this happened. उसके बाद से आज ये regulation है. Today, this is the regulation. Okay. Now, if it is a multi-state or a urban cooperative bank, it is regulated by RBI. Other rural cooperative banks are regulated together by RBI and state government, primarily by state government. RBI still has some regulation over them. अगर नाम में बैंक है तो RBI उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन एक्सरसाइज जरूर करेगा, बट इन अदर इनको हटा के या तो आप मल्टी स्टेट हो या आप अर्बन हो, बचे कौन? सिंगल स्टेट रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स. इस केस में द रेगुलेशन इज जॉइंटेड बिटवीन आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ, एंड प्राइमरीली इट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. प्राइमरीली इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट. एंड दिस रेगुलेशन अर्लियर ऑलमोस्ट ऑल कोऑपरेटिव्स वर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. ये रेगुलेशन चेंज ही तब की गई है जब पीएमसी बैंक में स्कैम हुआ है. After that scam in PMC Bank, it was seen that RBI was not able to regulate urban cooperative banks effectively because state governments were also interfering. तब ये regulation change करके urban cooperative banks were put under RBI, and the next year there was a question in the mains on urban cooperative banks, in the prelims on urban cooperative banks. So that is how current affairs get translated into prelims questions. So here what is happening is, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, आरबीआई विल रेगुलेट यू. एनी अदर रूरल कोऑपरेटिव बैंक, मतलब सिंगल स्टेट एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर. इफ यू आर अ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, ये क्या होता है हम एग्रीकल्चर के बेसिक्स में देखेंगे. इसका नाम सुना होगा आपने एग्रीकल्चर क्रेडिट में. दिस इज नॉट अ बैंक. ये बैंक नहीं है. पीएससीएस इज नॉट अ बैंक, राइट? If you are a primary agriculture credit society, you are regulated by state government. Okay, ये हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बेसिक्स में. What is DCCB, what is SCCB, what is PSCS? We will read all of this. This is under state government. For now, this much is sufficient. Now, what is the purpose here? Providing credit to members of cooperative society. अपने members को ही ये लोन्स देंगे. Now, what is the eligibility criteria? How do you get eligible to open a cooperative bank? It varies by state laws. हर स्टेट के डिफरेंट लॉज होंगे. आपके स्टेट के लॉज के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी वेरी होगी. टिपिकली क्या होता है, पहले यू गेट रजिस्टर्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी,
then there are some relevant regulations, we have to then comply with those regulations. इतनी डिटेल में यहाँ पर एलिजिबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, because of course it will be different for every state. Cooperatives का चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने लक्ष्मीकांत से. Did you read this chapter on cooperatives from Lakshmikant? Did you understand what is cooperative now? The principles of the cooperative movement, the idea of democratic voting in a cooperative. Right? This was your homework yesterday. तो अब शायद थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हर स्टेट के अपने लॉज अलग हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, है ना? नाउ does it accept deposit? Yes, it will accept demand deposit also, it will accept time deposit also. Now does it give loans? Yes, but limited to members and specific purposes. इसका काम लोन देना है, बट लोन किसको? क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये कोऑपरेशन पर्पस है, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए सिर्फ मेंबर्स को लोन देगा. कैन इट इशू अ क्रेडिट कार्ड? आरबीआई ने क्या बोला? इफ यू आर अ फाइनेंशियली साउंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मतलब आपकी मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीस है, then you can issue credit cards with certain conditions, otherwise you can't. So cooperative banks, can they issue credit cards? We will say if you are financially sound and have net worth of 100 crore rupees, right, then you will be able to issue credit cards. Then who are the target customers? Members of the cooperative societies are given the first preference, and they are the main target customers. Where are these banks present? In rural areas and semi-urban areas. What is the purpose? Is the purpose profit? No. Purpose is community service. They are not for profit banks, not meant to create profit. Then CRR is applicable but varies as per RBI directive. SLR is applicable, varies by RBI directive. Then priority sector lending, of course they are giving loans. This also varies by RBI directives and cooperative structures, and this regulation is only for urban cooperative banks. यहां पर ये urban cooperative bank की exception क्यों है? इतना weirdly ये urban cooperative bank क्यों आ रहा है हर जगह? This is coming because remember PMC scam. PMC scam के बाद all these banks were put under RBI. That is why everywhere you see an exception for urban cooperative banks, because PMC scam के बाद Banking Regulation Act को amend करके urban cooperative banks को RBI के अंडर डाला गया. Right? Now आरबीआई ने दूसरी चीज क्या बोली? आरबीआई ने कहा ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी रेगुलेट देम इवन फर्दर. तो आरबीआई ने उसी पीएमसी बैंक्स के अंतर्गत ये भी बोला, एलिजिबल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद 200 करोड़ इन कैपिटल, 15% CRAR. CRAR हम समझेंगे व्हेन वी रीड बाज़ेल नॉर्म्स. नेक्स्ट क्लास में दिस विल बी क्लियर टू यू, अभी ये टर्म इग्नोर करो. And proper governance standards can transition to small finance bank. आरबीआई क्या चाह रहा है कि जो बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनके पास 200 करोड़ तक की पैसे इकट्ठे हो गए हैं, डिपॉजिट्स इकट्ठी हो गई हैं, और उनके पास CRAR is, we'll see what Basel norms are, then we'll see, अभी डिटेल में नहीं जाते. इन बड़े बैंक्स को हम स्मॉल फाइनेंस बैंक बना देते हैं ताकि हम इनको और ढंग से रेगुलेट कर सकें. नाउ एग्जांपल्स ऑफ सच बैंक आर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. ये हमने देखा. अब इसमें what are the things that we have to remember? First, we have to remember that there is a differential regulation based on where your bank is and what type of cooperative bank you are. Then we have to remember that credit card can be issued, but there is a specific condition. Then we have to understand that RBI wants you to convert to small finance bank. And there is priority sector lending norms, but only for urban cooperative banks. और ये urban cooperative banks वाली exception यहाँ क्यों है? It is because of PMC scam. Is cooperative banks now clear to you? Cooperative banks का ये टेबल अब क्लियर है?
अब लास्ट आते हैं लोकल एरिया बैंक्स पे। देखो लोकल एरिया बैंक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हम एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसे इंडिया में अब 2-3 बैंक ही बचे हैं, राइट? ओनली 2-3 बैंक्स लाइक दिस आर लेफ्ट। आई विल अपलोड दिस टेबल यार, मैं घर थोड़ी ले जाऊंगा टेबल। so many comments have come that please upload this table. Of course मैं अपने लिए नहीं बनाया, आपके लिए बनाया है, राइट? अपने लिए ही नहीं बनाया ये टेबल, आपके लिए बनाया। ऑफ कोर्स आई थिंक इट शुड बी अपलोडेड नाउ एंड आई विल अपलोड दिस। आप इस चीज की टेंशन मत लो, ठीक है? लोकल एरिया बैंक्स, समटाइम्स यू गाइज आर क्वाइट फनी, इट्स गुड टू मेरा भी मूड लाइट हो जाता है। एनीवे, सो लोकल एरिया बैंक्स देखते हैं। These banks were actually introduced in the budget of 1996. क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हमें अभी समझ आएगा, राइट? हम अभी समझेंगे ये क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, राइट? We will, when we understand the banking structure, then this introduction will be clear to us. एक बार इनके फीचर्स देख लेते हैं। These banks are operating in, as the name suggests, they are operating in specific local areas to mobilize rural savings and provide credit. Very small local areas. ये क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे? आई कैन टेल यू इन शॉर्ट। ये लॉजिक था, द लॉजिक हियर वाज दैट लोकल एरिया बैंक्स विल हैव एक्सपर्टीज इन दैट एरिया। लेट्स से कोई बैंक बन जाए गुड़गांव बैंक, नाउ इट्स ओनली पर्पस इज टू फंक्शन इन गुड़गांव and maybe 1 or 2 districts around Gurgaon. It will develop expertise in that area. People working here will also be from Gurgaon. This bank will keep on functioning in Gurgaon. तो ये गुड़गांव में लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करके इट विल नो कि कब लोगों को लोन चाहिए, किस टाइप के लोन्स चाहिए. इट विल ऑल्सो नो which people to lend to and which people not to lend to. So that again for the purpose, broader purpose is financial inclusion, and in that broader purpose to develop local expertise, the idea of local area banks was proposed in the budget of 1996, and then this local area bank concept started. ठीक है? Now, who is regulating? RBI is regulating. What is the purpose? They are focused on local economic development and rural credit expansion. ये अभी समझ आएगा कैसे ये हो रहा है, ये अभी समझ आएगा. मिनिमम पेड अप कैपिटल इज ओनली 5 करोड़ रुपीस. यहां पर इतना कम क्यों है ये भी अभी समझ आएगा. विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज लेस आल्सो. बिकॉज दे आर मेंट फॉर लोकल एरियाज. डू दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स? यस, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. एक्सेप्ट मतलब डिमांड भी, टाइम भी. डू दे गिव लोन्स? यस, दे गिव लोन्स. लोन्स टू हु? स्मॉल बोरोवर्स एंड बिजनेसेस विद इन द लोकल एरिया. अभी हम जब ज्योग्राफिकल कंडीशन समझेंगे तो समझ आ जाएगा ये लोकल एरिया बार बार क्यों आ रहा है. नाउ हियर इज अ मेजर एक्सेप्शन. दे कैन गिव लोन्स, ये लोन्स दे सकते हैं विद इन द लोकल एरिया, बट दे डू नॉट गिव क्रेडिट कार्ड्स. दिस विल जस्ट बिकम अपैरेंट व्हाई, राइट? दिस विल जस्ट बिकम अपैरेंट व्हाई दे कांट गिव. डिपेंड, अभी आप जब ज्योग्राफिकल कंडीशन इनकी पढ़ेंगे. Who are they targeting? Rural and semi-urban population in the specified operational area. आपने कुछ 2-3 जगह बोल दी, बस इस एरिया में develop expertise and give loans. Now this is the most important line here. Area of operation of local area bank is limited to maximum of 3 geographically contiguous districts. मतलब this is district 1, this is district 2, this is district 3. दे आर कनेक्टेड ज्योग्राफिकली. इसके बाहर ये बैंक ब्रांच नहीं खोल सकता. सिर्फ टू ऑपरेट इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स. वेरी स्मॉल बैंक एट द लोकल लेवल टू ऑपरेट इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स. मेनली फोकस ऑन रूरल एरियाज इन दिस डिस्ट्रिक्ट. फोकस ऑन स्मॉल बिजनेसेस इन दिस डिस्ट्रिक्ट. सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है. तभी, क्योंकि ये बैंक सिर्फ 3 पे लिमिटेड है, तभी इस बैंक को क्रेडिट कार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती. Because then they will have to maintain their own payment system, etc. Credit card की कोई responsibility नहीं. Just issue loans within the area of these 3 districts only. Develop local expertise, यहीं पर loans दो, और this is the area you are supposed to serve. That's it. इसके बाहर नहीं जाना है. And why was this introduced? Introduced in 1996.
सेम ओवरऑल चैलेंज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसी चैलेंज को मीट करने के लिए ये कहा गया कि इस टाइप के बैंक्स आने चाहिए. When we read banking structure of India, we'll see that today only. Then you understand कि क्यों जरूरी थे. Then, are they profit oriented? Yes, but they have local development goals also. CRR applicable, but as per RBI directive. SLR applicable as per RBI directive. PSL same 40% as applicable to other domestic banks. Now, RBI has permitted them to be converted into small finance banks if they meet the eligibility criteria. हमने small finance banks की eligibility criteria में देखा था कि local area bank भी बन सकता है small finance bank. तो यहां पर भी वो same detail लिखी हुई है. Example, coastal local area banks, कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक. ऐसे बहुत कम बैंक्स हैं इंडिया में आज. आई थिंक देयर आर ओनली 5 or 3 या 6. दैट सम वेरी स्मॉल नंबर इज देयर. ठीक है, पर्पस समझ आया, करते क्या है ये समझ आया. इज नाउ लोकल एरिया बैंक एज अ कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? इज दिस कंसेप्ट क्लियर नाउ? लोकल एरिया बैंक क्या होता है? अब देखो, नाउ लुक एट दिस शीट अगेन. इन दो पेजेस से, इन दो पेजेस से 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीलिम्स में ऑलरेडी. ठीक है, हो गया, ये हमने पूरी शीट कवर कर ली है. इन दो पेजेस से 4 to 5 क्वेश्चंस हैव कम इन द प्रीलिम्स. अपलोड ये आई थिंक ऑलरेडी हो चुकी होगी. 99% ये ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होगी. प्लीज टेक अ लुक एट दिस एंड रिवाइज दिस टुडे. मेरे हिसाब से दिस इज माय अप्रोच. आई यूजुअली जब ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं तो मैं सबको एक जगह पे लिख के उनको स्टडी करना, आई प्रेफर इट. आई होप यू लाइक दिस अप्रोच. अगर आपको पसंद है तो आगे भी हमें एक दो टॉपिक्स अभी ऐसे बचे हैं जो ऐसे पढ़ने. तो आई होप आप, यू विल, इफ यू लाइक दिस देन you will also, you know, permit me, then I will have the next thing also in this format only. अगर आपको ये पसंद आ रहा है, क्योंकि मुझे ये बहुत सही लगता है. है ना, मुझे ये बहुत सही लगता है कि सब कुछ एक जगह पे है. गलती हो ही नहीं सकती. इसी को पढ़ना है, कहीं कंफ्यूजिंग भी हो तो भी रेफर कर लो. ठीक है, पहले हमने देखो इस टॉपिक पे आप लोगों ने पहले भी, आई एम श्योर ये सब बहुत पढ़ा होगा. जिन्होंने आज से पहले इकोनॉमी पढ़ी, आई एम श्योर आप लोगों ने ये बैंक टाइप्स वगैरह पढ़े होंगे. डायरेक्टली रटने की कोशिश करते हैं तो नहीं समझ आता. इसलिए व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू इज, पहले मैंने आपको लॉजिक समझाया कि कौन सा बैंक क्यों बना, फिर हमने इनके फीचर्स कंपेयर कर लिए. नाउ इट शुड मेक सेंस टू यू. तो इस चीट को प्लीज याद कर लेना. ठीक है, नाउ लेट अस टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 16 सेकेंड्स. बट कोई नहीं, लेट्स टेक अ प्रॉपर ब्रेक. काफी इंफॉर्मेशन हो गई, आई अंडरस्टैंड. लेट्स टेक अ 5 minute ब्रेक. आई विल सी यू इन 5 minutes. ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. सी यू इन 5 minutes.
हाँ सलोनी, आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इग्नोर कर सकते हो। कमल, कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा टॉपिक प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के। रविकांत इज सेइंग मिसिंग जादूज। एग्रीकल्चर के लेक्चर्स देखो, अगर 6 लेक्चर्स में मेंस के 50 नंबर प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं तो आई थिंक उससे बड़ा जादू कोई नहीं है। आपको आज मैं बाकी लेक्चर्स भी दे दूंगा एग्रीकल्चर के। यस अदिति, थैंक यू फॉर आस्किंग। ज्योग्राफी इसके बाद शुरू होगा आपका दीपक। आई एम अज्यूमिंग आप 2026 के फाउंडेशन कोर्स में हो। Sir, I don't know how to ask this politely, but do you ever feel that you wasted a seat in the IRS? एक तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है ये बात। The fact is that the moment I quit, another vacancy was created, and next year a new vacancy was filled. I would have wasted a seat if I would have done the training, taken the job, and then resigned. मुसाहिद, ये बात हम कर चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक्स लास्ट क्लास में, आई थिंक उससे पहले बात करी थी। ऑल राइट, चलो मेरी पर्सनल हिस्ट्री इग्नोर करते हैं और कंटिन्यू करते हैं ऑन दिस। लेट्स कंटिन्यू। हमने अब टाइप्स ऑफ बैंक समझ लिया है। इस टाइप्स ऑफ बैंक्स क्लियर नाउ? टाइप्स ऑफ बैंक समझ आ गया आपको? आई होप इट्स ऑल क्लियर। लॉजिक इज ऑल्सो क्लियर ऑफ हाउ टाइप्स ऑफ बैंक्स आर मेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किस बैंक का क्या काम है, क्या लॉजिक है, क्या एलिजिबिलिटी है, CRR, SLR, एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड, है ना। आगे चलते हैं। नाउ कल हम ये देख रहे थे, इंडिया जर्नी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन देख रहे थे हमने कल नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स देखा, क्यों हुआ। फिर हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देखा था। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को आज हम डिटेल में देखेंगे कि ये सेक्टर्स जो हैं, ये सर्टन सेक्टर्स, ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं और किस सेक्टर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम आज देखेंगे। नाउ पहले ये देखते हैं लीड बैंक स्कीम क्या है। लेट्स सी दिस, देन वील सी ब्रांच ओपनिंग रेगुलेशंस, देन वी विल सी डिटेल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। डिटेल में समझेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है। देखो, लीड बैंक स्कीम, दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI अगेन फॉर द पर्पसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का पर्पस था उसी के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई। इस स्कीम में क्या कहा गया? दिस स्कीम सेड दैट इन अ पर्टिकुलर एरिया वी विल अपॉइंट वन बैंक एज अ लीड बैंक। हम एक पर्टिकुलर एरिया में एक बैंक को लीड बैंक की तरह अपॉइंट करेंगे। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में लेट्स से आई हैव डेजिग्नेटेड SBI एज द लीड बैंक ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। This lead bank will talk to all the other banks in the area and make a plan for financial inclusion of this district. कि इस डिस्ट्रिक्ट में अब क्या किया जाए कि ये डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट हियर। ये पुरानी स्कीम है काफी। दिस ओल्ड स्कीम was at the time when India was trying to achieve financial inclusion. After Jan Dhan Yojana, we have almost achieved the first step of financial inclusion completely. अब ये इंट्रोड्यूस कर गई थी अर्लियर। द आइडिया वाज, उस टाइम पे सबके पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे, नंबर्स हमने कल देखे थे। यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस एरिया में लेट अस डेजिग्नेट वन बैंक एज द लीड बैंक। एक बैंक को हम डेजिग्नेट करते हैं एज लीड बैंक, राइट। व्हेन डेजिग्नेटेड एज लीड बैंक फॉर अ डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए इस बैंक को हमने डेजिग्नेट कर दिया दैट दिस इज द लीड बैंक। लेट्स मेक अ प्लान फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट।
ये बैंक एक बुलाएगा मीटिंग ऑफ ऑल द अदर बैंक्स इन दैट एरिया एंड कहेगा कि हम एक प्लान बना रहे हैं फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इट विल सबमिट दिस प्लान टू आरबीआई. दिस बैंक डज नॉट हैव एनी पावर ऑन अदर बैंक्स. ऐसा नहीं है कि एसबीआई को अगर डेजिग्नेट कर दिया लेट्स से गुड़गांव का लीड बैंक, तो इट हैज पावर टू रेगुलेट अदर बैंक्स ऑफ गुड़गांव. ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है. जस्ट डिस्कशन एंड मेकिंग अ प्लान, दैट इज द ओनली पर्पस, नथिंग एल्स. दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड अगेन फॉर द ब्रॉड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. नेक्स्ट थिंग, ब्रांच ओपनिंग रेगुलेशंस. ब्रांच ओपनिंग रेगुलेशंस क्या क्या मतलब? इस टाइप का कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर ब्रांचेस मस्ट बी इन अनबैंक्ड एरियाज. इस टाइप की रेगुलेशन भी हमने देखी. वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इन वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स. स्मॉल फाइनेंस बैंक पे रेगुलेशन थी कि 25% ऑफ बैंक्स इन अनबैंक्ड रूरल एरियाज में आप खोलो. दिस इज ऑल्सो अ स्टेप वाई टू इंक्रीज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया. नाउ लेट्स टॉक ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. हमने कल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल सर्टिफिकेट्स, शॉर्टफॉल, आरआईडीएफ ये सब देखा था. अब इसको डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले आप क्या करोगे, हमने यही पढ़ा था कल. वी विल आइडेंटिफाई सर्टेन प्रायोरिटी सेक्टर्स. टू दीज प्रायोरिटी सेक्टर्स यू मस्ट गिव 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट. विच सेक्टर्स आर दीज? कौन कौन से सेक्टर्स हैं? हर सेक्टर की एक स्पेसिफिक डिनोमिनेशन भी है. तो ये सेक्टर्स हैं. एक बार इसको रीड कर लेते हैं. ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट सेक्टर इज वीकर सेक्शंस. शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, विमेन, फिजिकली हैंडिकैप्ड पीपल, माइनॉरिटीज, मैनुअल स्कैवेंजर्स, आर्टिजन्स. पीएम जनधन योजना ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट मींस मेरे बैंक में लेट्स से देयर इज 0 रुपीज बैलेंस, still I make a payment of 1000 rupees. This is called overdraft. I have taken extra money than my bank account. That means it is a technical loan. तो जनधन योजना में, हम जनधन योजना भी डिटेल में देखेंगे, जनधन योजना में 10,000 रुपीज तक के ओवरड्राफ्ट्स एज लोन्स अलाउड हैं. तो दिस इज टेक्निकली अ लोन. दिस ऑल्सो काउंट्स एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. तो ये सारे, this is the first section. 12% of your adjusted net bank credit should go to this, and of course this is minimum. आप चाहे तो 100% दे दो इनको, 100% नहीं दे सकते of course, बट आप 12% से ज्यादा दे दो. ये मिनिमम आपको मीट करने पड़ेंगे. सेकेंड इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में ऑल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर हो, बिग फार्मर हो, किसी भी तरह का फार्मर हो, एग्रीकल्चर में आप लोन दोगे. 8% आपका एग्रीकल्चर लोन्स होने चाहिए. राइट? एग्रीकल्चर में हमने देखा था कि क्रेडिट वाज अ प्रॉब्लम, तो यहां पर एग्रीकल्चर डाला गया. अब एग्रीकल्चर में आपको याद होगा, आपने मेरे साथ एग्रीकल्चर का अगर फर्स्ट लेक्चर देख लिया है, मैं बस इसलिए आपको कह रहा था सारे लेक्चर्स देख लो ताकि आपको एक बेसिक कंटेक्स्ट मिल जाए. आपने देखा होगा उस लेक्चर में मैंने बताया था दैट देयर आर स्मॉल फार्मर्स, देयर आर बिग फार्मर्स. राइट? साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग. जब हमने लैंड पढ़ा था वहां पर आई वाज एक ग्राफ बनाया था. 89% नाउ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर देयर. राइट? अब अगर आप एक बैंक हो और आपको बोला जाए कि आप प्लीज एग्रीकल्चर में लेंडिंग करो, राइट? तो आप क्या चाहोगे? आप बिग फार्मर को देना चाहोगे. अगर आप बिग फार्मर को दोगे, आपका लोन वापस आने की चांस ज्यादा है. बिग फार्मर के पास अपना खुद का डेटा भी होगा. तो बिग फार्मर्स हैव मच हायर चांस ऑफ रिटर्निंग योर लोन. तो जब ये रेगुलेशन लगाई गई, सारे बैंक्स ने बिग फार्मर्स को लोन देना शुरू कर दिए. तो अब क्या सेकंड रेगुलेशन लगाई कि एक तो एग्रीकल्चर ओवरऑल है जिसमें आपका 8% होना चाहिए, एक है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का 10% है. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्मॉल फार्मर? बिटवीन 1 and 2 hectare land. What is marginal farmers? Less than 1 hectare land. So 10% of your loans must be to small and marginal farmers. 10% to small and marginal farmers, 8% to anyone in agriculture. Anyone. उसमें ये काउंट होगा, इसमें ये नहीं होगा. नाम पढ़ के क्लियर हो जाएगा. राइट? देन माइक्रो एंटरप्राइजेस. व्हाट आर माइक्रो, व्हाट आर स्मॉल, व्हाट आर मीडियम एंटरप्राइजेस, ये हम देखेंगे. माइक्रो एंटरप्राइजेस, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज.
माइक्रो एंटरप्राइजेस का डायमेंशन है 7.5%. एंड देन देर आर सम अदर कैटेगरीज, दिस लिस्ट आई विल आस्क यू टू रीड वंस. इसमें है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, स्टूडेंट एजुकेशन लोन्स अप टू 10 लाख, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लोन सच एज स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, कोविड रिलेटेड फैसिलिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं. दीज आर 2.5%. दिस टोटल कम्स आउट टू 40%. दिस इज योर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट. तो इन कैटेगरीज में आपकी जो फर्दर डिवीजन है वो भी आपको मीट करनी पड़ेगी. ठीक है. नाउ हमने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स देखे, इसको भी देखते हैं, 1 मिनट बस. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अगर इनकी मैं बात करूं तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप. वन कैन बी फॉरेन बैंक, मतलब दिस इज रजिस्टर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट ऑफ सम अदर कंट्री. ये बैंक रजिस्टर्ड है यूएसए में, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका. ये बस इंडिया में कुछ ब्रांचेस खोल देता है, तो इसे इंडिया में भी रजिस्टर होना पड़ेगा. इंडिया की कंपनीज एक्ट भी इस पे एप्लीकेबल होगी, बट इट इज ब्रॉडली अ बैंक दैट इज रजिस्टर्ड अब्रॉड, राइट. इसकी प्राइमरी रजिस्ट्रेशन अब्रॉड है. ये बस इंडिया में आके कुछ ब्रांचेस खोल देता है. इट जस्ट ओपन सम ब्रांचेस इन इंडिया. लेट्स से इट ओपन्स 5 or 6 ब्रांचेस इन इंडिया. देन इट इज कॉल्ड अ फॉरेन बैंक. इट इज प्राइमरीली रजिस्टर्ड अब्रॉड, जैसे कि HSBC, जैसे कि सिटी बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, रजिस्टर्ड अब्रॉड बट ओपन सम ब्रांचेस इन इंडिया. इस बैंक को इंडिया में लाइसेंस कैसे मिलेगा? सेम कंडीशन होगी इस पे भी लाइसेंस वाली, सेम कंडीशन होगी लाइसेंस वाली जैसे और किसी भी बैंक पे है. जैसे एक्सिस बैंक को जैसे लाइसेंस मिला वैसे ही HSBC को भी लाइसेंस मिलेगा. इट विल हैव टू फुलफिल ऑल दिस क्राइटेरिया जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का क्राइटेरिया था. But licenses are given on reciprocal basis. What does this mean? If America chooses to give license to SBI to open branches in US, only then we will give license to American banks. SBI चाहता है कि वो अपनी कुछ ब्रांचेस अमेरिका में खोले. That does not mean SBI is American bank. SBI रहेगा तो इंडियन बैंक. It is just opening some branches in America. तो अगर अमेरिकन बैंक यहां ब्रांचेस खोलना चाहे, इफ अमेरिकन बैंक वांट्स टू ओपन सम ब्रांचेस इन इंडिया, वी विल ओनली गिव दिस लाइसेंस ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस. अगर हमें मिलेगा लाइसेंस, हमारे बैंक्स को मिलेगा, तभी हम देंगे. इफ चाइना सेज वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी लाइसेंस टू इंडियन बैंक, देन वी विल ऑल्सो नॉट गिव एनी लाइसेंस टू चाइनीज बैंक्स. ओके. फॉरेन बैंक्स पे नॉर्म्स कैसे लगती हैं? नॉर्म्स आर द सेम. TSL criteria, etc. Same norms are there, but there is a difference in PSL. ये difference हम समझेंगे. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है बेस्ड ऑन आपकी कितनी ब्रांचेस हैं. हाउ मेनी ब्रांचेस यू आर, दैट विल सी. नाउ लेट्स से देयर इज अ फॉरेन बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका. इट ओपन्स ओनली 10 ब्रांचेस इन इंडिया. आपने फिर भी बैंक ऑफ अमेरिका को कहा, ऑफ कोर्स, दैट 40% ऑफ योर A and BC must go to priority sector lending targets. Is it wise now to tell Bank of America that this 40% also you segregate into various categories? ये जो कैटेगरीज हमने दी हैं कि एग्रीकल्चर के लिए, स्मॉल मार्जिनल के लिए 10%, ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए 1%, वीकर सेक्शंस के लिए 12%, is it wise to give this segregation to them? It is not wise, simply because they only have 10 branches. वो कहेंगे हमारे पास एक्सेस ही नहीं है एग्रीकल्चर का. हम अगर आप 40% ओवरऑल बोलो तो हम दे सकते हैं, राइट, बट दे हैव वेरी लेस ब्रांचेस. दे विल नॉट बी एबल टू मीट दिस सेग्रीगेशन क्राइटेरिया. जो अंदर का सेग्रीगेशन है हो सकता है वो मीट ना कर पाए. एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ द रेगुलेशन इज स्ट्रक्चर्ड. तो रेगुलेशन कैसी है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की? If you are a foreign bank in India with less than 20 branches, आपकी 20 से कम ब्रांचेस हैं,
you have to still meet 40% of ANBC as PSL. बट जो सब टारगेट्स हैं, सब कैटेगराइजेशन है कि एग्रीकल्चर को 18%, वीकर सेक्शन को 12%, वो आपको नहीं मीट करने। आप बस ओवरऑल 40% कर लो, इसके बीच में ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक इन इंडिया हु हैव मोर देन 20 ब्रांचेस, 20 और मोर, they are treated as same 40% of ANBC as PSL and have to meet the sub targets also. Regional rural bank 75%, small finance bank 75%, urban cooperative bank 75%, rural cooperative bank 75%, बाकी सब पे 75%. बट ये एक्सेप्शन फॉरेन बैंक वाली समझ आई? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? फॉरेन बैंक इन इंडिया वाली एक्सेप्शन समझ आई? क्यों है ये? क्योंकि इनकी ब्रांचेस इतनी कम हैं, तो ये जो अंदर के सब कैटेगराइजेशन के क्राइटेरिया हैं, इनको ये मीट नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि आप ओवरऑल 40% कर दो, ओवरऑल 40% कर दो, बाकी यू कैन, इट विल बी ओके। नाउ हमने क्या देखा था? मान लो बैंक का पीएसएल मीट ना हो, लेट्स से पीएसएल आपका मीट ना हो, तो बैंक के पास दो ऑप्शंस थे। या तो आप पीएसएल सर्टिफिकेट्स को ट्रेड करो, कैप एंड ट्रेड सिस्टम हमने कल समझा था। द अदर ऑप्शन वाज यू कंट्रीब्यूट टू सर्टेन फंड्स। इस चीज को आप समझते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, जो आरआईडीएफ वाली कल बात हो रही थी वो है क्या? नाबार्ड का आरआईडीएफ था, आपको देना था लोन 100, लेट्स से आपको 40 रुपीज पीएसएल में देना था, आप सिर्फ 30 दे पाए, नाउ 10 इज लेफ्ट। या तो आप सर्टिफिकेट खरीद लो, सर्टिफिकेट खरीदना हमने कल देखा था। इफ देयर इज अदर शॉर्टफॉल, व्हाट डू यू डू? व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर गिविंग लोन्स टू पीएसएल? आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर रहे हो, इज देयर एनी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट? आप कुछ कंसेशन देते हो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? आपका लोन, मान लो योर लोन generally go out at 10% rate of interest, so at a loan you earn 10%. do you give any concessions for PSL? क्या आप कम करते हो PSL के लिए? नहीं। तो आप PSL में पैसे दोगे, even at this money you will earn 10% rate of interest, है ना? कंसेशन तो नहीं देते। अब आपको टोटल 40 रुपीज लोन्स देने थे, आप यहां पर सिर्फ 30 रुपीज दे पाए, 10 रुपीज आर लेफ्ट। तो आरबीआई आपको क्या बोलेगा? डिपॉजिट दिस 10 रुपी इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड आज ही देखेंगे क्या होता है। आरआईडीएफ में ये 10 रुपीज डिपॉजिट करो। व्हाट विल आरआईडीएफ डू? आरआईडीएफ इज अ फंड। फंड मीन्स lot of money from various sources is getting collected here. Various sources से lot of money gets collected here. ठीक है। अब ये फंड करता क्या है? This fund further invest. It further invest in infrastructure projects. Rural infrastructure के projects में ये invest करता है। Okay. Now, if this fund will invest, it is possible that this fund will give loans here. This fund, NABARD collects money from various sources. From various sources, it collects money and gives that money as loan for rural infrastructure projects. ठीक है। अब यहां पर NABARD जो लोन्स देता है, these are loans at concessional rate of interest. तो लेट्स से कि यहां पर लोन दिया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा एट 5%। सो अब क्या हुआ? आपका 30 रुपीज तो आपने पीएसएल में दे दिया, जो 10 रुपीज आपका रह गया, आरबीआई ने कहा आप आरआईडीएफ में दो। नाबार्ड ने सारा फंड कलेक्ट किया 10 रुपीज आपके, जिसका बाकी बैंक्स की भी दिक्कत आएगी, थोड़ा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर देगी आरआईडीएफ में वगैरह वगैरह। इससे अब वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लोन्स देता है नाबार्ड। कैसे देता है नाबार्ड वो भी हम देखेंगे। डायरेक्ट लोन्स नहीं होते ये,
व्हाट इट इज वी विल सी, इट इज कॉल्ड रीफाइनेंसिंग, हम अभी देखेंगे। अब ये जो आगे लोन्स दिए, दीज आर गिवन एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स। अब आप अपने इन 10 रुपीज पे क्या कमाओगे? अब व्हाट विल यू अर्न एट दीज 10 रुपीज? नाउ you will at these 10 rupees earn 5% only, right? अब आप 5% ही कमाओगे, तो आपके जीरो नहीं कमाओगे, आप आपका भी तो पैसा आगे लोन पे जा रहा है। यू विल अर्न 5% एट दिस 10 रुपीज नाउ। नाबार्ड को प्रॉफिट थोड़ी इकट्ठा करना है आपसे, पेनल्टी नहीं है ये। आपके 10 रुपीज को नाबार्ड ने आपसे लिया, क्या है, हम देते हैं लोन, तुमसे नहीं दिया जा रहा, पीएसएल मैं देता हूं, इतनी तो बात है। नाबार्ड ने कहा कि आई विल टेक योर 10 रुपीज एंड आई विल गिव दिस एज लोन। कितने परसेंट पे वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं डिसाइड करोगे, क्योंकि तुमसे तो दिया नहीं गया, तुम्हें करना था तो तुम कर लेते, राइट? नाबार्ड कहता है मैं देता हूं, नाबार्ड विल गिव दिस एट 5%। मान लो नाबार्ड का कोई प्रॉफिट नहीं है, नाबार्ड ने 5% पे दिया, नाउ यू आर अर्निंग 5% एट दीज 10 रुपीज। इज दिस अ लॉस फॉर यू और नॉट? अगर आप यहां दे देते तो आप 10% अर्न करते, आपको लॉस हुआ या नहीं हुआ? This is a loss for the bank because these 10 rupees have now gone for a long period at 5%. अगर खुद लोन देता मैं तो 10% पे जाते। So if you have this is the way penalty is put. There is a penalty in this way कि आपका पैसा RIDF में चला जाएगा जहां पर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर आप खुद PSL रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते, then NABARD will meet your PSL requirement for you. Basically, NABARD is meeting your PSL requirement. But then it will be done at concessional interest rate because you were not able to do it yourself. Now you bear this loss. What is the other option? What is the other option to the bank? ये नहीं करना तो क्या ऑप्शन है? सर्टिफिकेट्स खरीद लो। तो या तो यहां पैसे लूज करो, या तो यहां पैसे लूज करो, या फिर सर्टिफिकेट्स के लिए कुछ पैसे दे दो। So in both options, bank will now check कि यहां पर what is the money I am losing here and what is the cost of the certificate. Let's say I am losing 2 rupees here and cost of certificate is 1 rupee. So I should buy the certificate. I am losing 1 rupee here, cost of certificate is 2 rupees. I will put my money here. समझ आ गई बात? अब क्लियर हुआ PSL सर्टिफिकेट और ये? I just wanted to come to this after we had done PSL. Is this clear now? This is RIDF of NABARD. Similar ऐसा एक और फंड, अगर you are unable to meet your, if you are unable to meet your PSL requirements, ऐसा एक फंड है नाबार्ड का RIDF. One more fund like this is UIDF, Urban Infrastructure Development Fund. Concept is the same, but this fund is run by National Housing Bank. ऐसे और भी काफी फंड्स हैं, सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज द आइडिया। आपकी PSL शॉर्टफॉल हुई, दो ऑप्शन है, या तो आप PSL सर्टिफिकेट खरीद लो या इन फंड्स में पैसा दे दो, ठीक है? अब व्हाट्स द नेम, संकेत, संकेत ने क्वेश्चन पूछा है PSL इज चेक्ड एनुअली और मंथली? एब्सोल्युटली नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है? वी कैन गो इनटू एज मेनी डिटेल्स एज वी वांट, बट जितनी हमें चाहिए यूपीएससी के लिए, वी डोंट नीड टू गो इनटू दिस, ठीक है? कि एनुअली चेक होता है, मंथली चेक होता है, ANBC का फॉर्मूला क्या होता है, नॉट रिक्वायर्ड। बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर दैट if you have a shortfall, you will either give funds here or trade the certificate. Now, अब एक प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करो। This is bank A, this is bank B. Bank A gives a loan to a farmer in, let's say, Tripura. ठीक है? बैंक बी क्या करता है? दिस गिव्स लोन टू अ फार्मर, बोथ ऑफ दीज आर लेट्स से स्मॉल फार्मर, ये भी स्मॉल फार्मर है, ये भी स्मॉल फार्मर है,
and they give loan to small farmer in, let's say, रोहतक. ठीक है. अब विच ऑफ दीज इज बेटर फॉर इंडिया? इंडिया के लिए कौन सा बेटर है कि त्रिपुरा में फार्मर को लोन मिले या रोहतक में मिले? मतलब ज्यादा किसका पर्पस सर्व हो रहा है? ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज बेटर, बिकॉज रोहतक इज नॉट एन अनबैंक्ड एरिया. यहां पर तो वैसे भी फार्मर को बहुत और जगह से लोन मिल सकता है. रोहतक बेटर क्यों है? देखो, ऐसे मत बोलो कि रोहतक इज बेटर. आप, आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा गलत चला गया. विच ऑफ दीज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बेटर? विच ऑफ दीज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बेटर? रोहतक में तो वैसे भी मिल जाएगा ना फार्मर को. इस बैंक से नहीं मिलेगा तो और बहुत सारे बैंक हैं रोहतक में. रोहतक इज अ फेयरली एडवांस सिटी. हरियाणा में है रोहतक. मैं यहां पे दिल्ली लिख देता हूं. चलो, आई राइट दिल्ली हियर फॉर पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. दिल्ली में एक फार्मर को लोन दिया, स्मॉल फार्मर को. अब दिल्ली में तो बहुत सारे बैंक्स हैं, राइट? यहां पर क्या है, त्रिपुरा में बहुत कम बैंक्स होंगे रिलेटिव टू दिल्ली. फार्मर्स को जो लोन देने वाले बैंक होंगे त्रिपुरा में, दे विल बी मच लेसर relative to the banks that are there in Delhi. Delhi will have much more banks relative to Delhi. Delhi will have much more banks. Tripura will have much less. यहाँ पर banks काफी कम है. Ideally, this is a better condition. We want to reward this bank. इस बैंक को reward मिलना चाहिए because it is meeting the conditions of financial inclusion. But अगर मैं PSL की counting करूं, let's say this loan is 100 rupees and this loan is also 100 rupees. तो मैं अगर पीएसएल की काउंटिंग करूं तो मैं इस लोन और इस लोन को बराबर काउंट करूंगा, क्योंकि मैंने कोई ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया तो लगाया नहीं. मैंने कहा भाई स्मॉल फार्मर को लोन है 100 रुपीज का लोन है, काउंट इन पीएसएल. स्मॉल फार्मर को लोन है 100 रुपीज का लोन है, काउंट इन पीएसएल. इज दिस अ प्रॉब्लम और नॉट? देन एवरी बैंक विल से ठीक है यार, हम दिल्ली में लोन दे देते हैं. क्या जरूरत है एक्सपैंड करने का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? वहां हमें कोई एडवांटेज भी नहीं मिल रहा. And right now we don't have any branches there. This will take more effort from the bank. This will take less effort. तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, to solve this problem, a new system was introduced. This is called geographical weightage. आरबीआई ने कहा इन द फर्स्ट केस, इन दिस केस, जो त्रिपुरा वाला केस है, यू हैव डन मोर एफर्ट. योर एक्चुअल लोन अमाउंट इज 100 rupees, but for the purpose of PSL we will count this as 110 rupees. For purpose of PSL counting, PSL counting के लिए कैसे होती है PSL counting? सर्टिफिकेट देके. लोन आपने 100 रुपीज का ही दिया है, आपको सर्टिफिकेट हम देंगे 110 रुपए का. क्यों? बिकॉज यू हैव डन एक्स्ट्रा एफर्ट. सो इफ यू आर गिविंग लोन इन एन अनबैंक्ड एरिया, वी विल गिव यू अ PSL सर्टिफिकेट फॉर 110 rupees. इफ यू हैव गिवन लोन इन ऑलरेडी बैंक्ड एरिया, आपने लोन तो 100 रुपीज का दिया है बट आपने कुछ एफर्ट नहीं लगाया ज्यादा, वी विल गिव यू सर्टिफिकेट ऑफ 90 rupees. नाउ देयर इज एन इंसेंटिव फॉर बैंक्स टू गो फॉर द फर्स्ट रूट. अब एक्स्ट्रा एफर्ट को रिवॉर्ड किया जा रहा है. ज्योग्राफिकल वेटेज असाइन कर दी गई है पीएसएल को. समझ आई बात? लोन इतना ही है, लोन विल नॉट चेंज. लोन, रिकवरी, इंटरेस्ट, नथिंग विल चेंज. Just the value written on the certificate will change. Now this problem gets solved. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? This is geographical weightage assigned to PSL loans. So weighted loans are given under PSL. More weightage to loans इन लो क्रेडिट पेनिट्रेशन डिस्ट्रिक्ट, जहां पर क्रेडिट पेनिट्रेशन नहीं है, जो अनबैंक्ड एरियाज हैं, जहां पर क्रेडिट नहीं मिलता, वहां पर लोन दोगे, उन डिस्ट्रिक्ट्स में लोन दोगे तो आपको वेटेज ज्यादा मिलेगी. राइट? नाउ टाइप्स ऑफ बैंक्स हम ब्रॉडली कर चुके हैं.
We have seen this scheduled, non-scheduled, right? I just want you to read this part once. इसमें वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Nothing new is there. ये समझते हैं एक बार. Foreign banks versus foreign shareholding in banks, right? पहले समझते हैं what is the meaning of shareholding. इस टर्म का मतलब क्या है? Shareholding simply means ownership. What is your ownership of this company? Right? If I own, let's say, 1,000 rupees of shares of Reliance, then I am 0.000000001% owner of Reliance. It simply means ownership. Right? Other word for this is equity. What is my equity in this company? I own a 1,000 rupees share of Reliance. Market cap of Reliance is, let's say, 25,000 crores. तो मैं बहुत छोटा सा ओनर हो गया. मार्केट कैप मींस टोटल वैल्यू. मार्केट कैप हम देखेंगे क्या होता है when we study capital markets. Now let us understand foreign banks versus foreign shareholding in Indian banks. दोनों चीजें हो सकती हैं. There can be a foreign bank, there can be foreign shareholding in Indian bank. इन दोनों को समझते हैं. फॉरेन बैंक क्या होता है? Which is registered in a foreign country, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका. देखा था हमने इसका एग्जांपल. ये बस इंडिया में कुछ ब्रांचेस खोल रहे हैं, राइट? नथिंग एल्स इज हैपनिंग. इंडियन बैंक की मैं बात करूं तो इंडियन बैंक दो तरह के हो सकते हैं. देयर कैन बी पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक मींस गवर्नमेंट बैंक्स. It is generally seen that in public, generally बोल रहा हूं मैं, I am saying the words very carefully. It is generally seen that in public sector banks, government holds 51% of the shares or more. 51% or more. So who is the effective owner? SBI जैसे है, SBI के शेयर भी आप खरीद सकते हो, right? If you buy SBI's shares, you also become some owner of SBI. But the majority owner, majority shareholder is government. Majority shareholder is government. Private sector banks में majority shareholder will be a private individual or a private company. Private individual will be majority shareholder, right? Public sector bank में 51% of shares are owned by government. Private में majority will be owned by a private individual. Now, if a foreign individual wants, मान लो कोई foreign individual है who wants to buy shares of these banks. Share market में तो कोई भी ट्रेड कर सकता है. If a foreign investor wants, they can also trade in the Indian share market. कैसे करते हैं वो देखेंगे. But foreign investors also trade in Indian share markets. Foreign investor wants to buy shares of public sector bank, right? This is what, अब ये जो green arrows हैं, what are they representing? This is foreign shareholding in Indian banks. How did I define Indian bank? मैंने कैसे define किया Indian bank को? Registered primarily in India. इनकी registration of the company happened in India. Foreign bank registered in foreign country. Bank of America registered in America first, then branches are opening. Indian bank registered in India, then branches are opening. SBI की भी branches हैं US में. Bank of America की भी branches हैं India में. But where is SBI registered? Registered in India. Where is Bank of America registered? Registered in America. This is what happening. This is foreign individual या foreign investor shareholding in an Indian bank. Is this clear? A foreign investor has some shareholding in an Indian bank. Is this clear? समझ आई ये बात? Now, there are certain norms here. In a public sector bank, a foreign investor
can have maximum of 20% of shares. 20% of shares is the upper limit. Beyond 20% shares of a public sector bank cannot be owned by a foreign individual. 20% combined. All foreign individuals combined. So maximum foreign shareholding in a public sector bank is 20%. Maximum foreign shareholding in a public sector bank is 20%. Maximum foreign shareholding in private sector bank discuss करते हैं. Maximum foreign shareholding in public sector bank is 20%. 20% से ज्यादा shares cannot be owned by foreign individuals. Private sector bank में what is the rule? Generally it is allowed up to 49%. 49% पे कोई दिक्कत नहीं है. 49% if in a private sector bank 49% is held by foreign individuals, foreign investors, it's not a problem. This can be increased to 74% after taking permission from the government. Government से permission लेने के बाद this can become 74% also if you take permission. 49% is allowed automatically. 49% के लिए आपको कोई explanation लेने की जरूरत नहीं है. So 49% automatic, 74% after approval. This process of foreign individuals owning shares in Indian companies, this is nothing but foreign direct investment. We will see this in international economics. हम दोबारा देखेंगे ये concept को detail में. This is nothing but foreign direct investment. Okay, समझ आया ये? Is this clear? So क्या rules हैं? What are the rules? If you are a bank registered in India, if you are a public sector bank, foreigners can own maximum 20% of your shares. If you are a private sector bank, foreigners can own up to 74%. Till 49%, they don't require any permission. From 49 to 74%, permission will be needed from the government. For example, if you can see the examples here, if you look at the shareholding pattern in HDFC, HDFC currently has 73% of its shares given to foreign investors. यहाँ पर you can see the examples. Canara Bank. Canara Bank is a government bank. Canara Bank has 18% foreign ownership. Bank of Baroda, government bank, 15% foreign ownership. Kotak Mahindra Bank, private sector bank, 41% private ownership. Yes Bank, 30% private ownership. IndusInd Bank, 63% foreign ownership. यहाँ पर ये examples दिए हैं. I will be uploading this entire PDF for you. Some examples are given. आपको ये figures याद नहीं करने. The logic should be clear to you. समझ आया? So if you look at IndusInd Bank today, IndusInd Bank is an Indian bank. Indian, it was registered in India first as a bank. Right? IndusInd Bank, 63% of these shares are owned by foreign individuals or foreign investors. This does not make it a foreign bank. It is still an Indian bank. Just the shares are owned by foreign individuals or foreign investors. Till 49%, you require no permission. Till after 49 to 74%, you require approval. Is this clear? ये पढ़ लेना एक बार. यहां पर ये सेम बात लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं. Is this clear? Okay, great. Let's get back. This we have seen, this we have seen. Local area bank also we have seen. Now, let's understand this. Now, you will understand why local area bank was proposed. The idea is that the banking structure in India, if you look at the banking structure in India today, you will know the names of many big banks. You will know the names of banks like SBI, Axis, etc., ICICI, etc. These big banks are targeting whom? They are targeting everyone. They are giving car loans, they are giving home loans, they are giving education loans, they are giving all sorts of loans. Do these banks have any local intelligence? No.
Since they are not developed as local banks, they don't have any local intelligence. Now, we feel they are big banks. हमें लगता है कि Axis, SBI, HDFC ये बहुत बड़े banks हैं. But the fact is, there is only one bank of India in the top 50 banks of the world. That bank is SBI, and it is at 48%. 48th position. This is the ranking of SBI in the world, 48th. और इसके ऊपर कोई इंडियन बैंक नहीं है. Right? So if you look at internationally competitive lending practices, अब इसको हम relate करते हैं to what is happening in the world. There is an Indian company called ONGC Videsh Limited. ONGC का काम क्या है? ONGC का काम है Oil and Natural Gas Corporation of India. So its job is to mine oil and natural gas, extract oil and natural gas from various parts of the world. है ना? ONGC Videsh Limited, let's say, wants a contract in Vietnam. ठीक है, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वियतनाम में. Vietnamese government has discovered that there is some crude oil present in our country, and we want someone to come take that crude oil, give us some royalty, mine that crude oil, extract that crude oil, convert it into petrol and sell. Okay. Vietnam government, how will Vietnam government get companies here? They will issue a tender. They will issue a tender and say, we are inviting applications from various countries and various companies across the globe. Whoever wishes to apply, you can apply. On one side, there is ONGC Videsh Limited. On the other side, there is Aramco. Aramco is Saudi Arabia's oil company, one of the largest oil companies in the world. Now they will have to compete. Let's say there is one more company here, X, this is a Chinese company. Now in this contract, to get this contract, let's look at the economics behind how these companies will operate. There will be some cost of extraction. Above this cost of extraction, they will pay some royalty to the Vietnamese government, and then they will be able to make a profit. This will be their selling price of oil. Correct? यही होगा. अब one of these components of cost of extraction is cost of funds. They will have to borrow. ऐसा तो है नहीं that ONGC has enough money to go and directly put their equipment there. They will have to borrow some funds, take a loan. Then when they borrow these funds, then they will be able to perform this operation, and later they will be able to repay the loan. That is how any business venture in the world happens. Right? Now, if you look at the cost of funds, what is the price of money? What are these cost of fund? When we make the price quantity graph for money, what is the price of money? Batao, this you have to tell me. You can't be wrong here. What is this cost of funds? What is it called? Interest rate. This is interest rate. Up. ONGC Videsh Limited asks for a loan from SBI. SBI से लोन मांगता है of 1000 crores. SBI says we can lend you at best at 8%. We cannot lend at less than 8%. Aramco goes and asks for loan from Saudi Arabian bank. Saudi Arabian bank gives this loan at 2%. Chinese company asks for loan. They can give this loan at 1%. Who is going to get the contract ultimately? Either Aramco will get it or this Chinese company will get it. Right? ONGC is not going to get this contract. That is for sure. Because their cost is so high. Their cost is so high that no matter how good they are at the rest of the process, ये तो एक cost है ना, और भी cost होगी, salaries, equipment, management, etc., etc. No matter how good ONGC is at the rest of this process, they cannot possibly get this contract because their cost of funds is 8%. Why is our cost of funds 8%?
Because we don't have a big enough bank who is lending to these sort of projects. हमारे पास एक इंटरनेशनली कंपेटिटिव बैंक ही नहीं है, right? We don't have an internationally competitive bank. Why don't we have an internationally competitive bank? Why can't our banks lend at 2%? Our banks cannot lend at 2% because most of the banks here are catering to all sections of the society. If you have these big banks, they are not only for, ये big banks इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट्स को, बड़े प्रोजेक्ट्स को कम पैसे पे लोन दे सकें. They don't exist for this purpose. They exist only for things like car loans, home loans. If you are engaged in this process, you will never specialize in funding specialized developmental projects. इंडिया में एक भी ऐसा बैंक नहीं है जो स्पेशलाइज करता हो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे. सो वी डोंट हैव इंटरनेशनली कंपेटिटिव बैंक्स. दिस इज आवर बैंकिंग स्ट्रक्चर. वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ बिग बैंक्स. बिग मींस नेशनली प्रेजेंट, SBI, Axis, ICICI, etc. Then less number of regional banks. This is not regional rural banks. ये regional rural banks नहीं है. Regional banks means banks that are present in a certain region only. For example, Bank of Maharashtra, mainly present in North India and West India, right? And lastly, small local area banks. ऐसे तो बहुत ही कम है. You probably don't even know the name of any one small local area bank, right? That has developed regional intelligence. Because of this top heavy structure, banks at the top are focused on all segments of the population and have not been able to specialize in meeting the needs of any one section. Since these banks are investing or giving loans in all sections, they have not been able to specialize of any one particular section. None of them is specialized in developmental finance. None of them is specialized in export finance. They are giving to all sections. Master of none, jack of all. That is the situation of our banking situation today. इससे हो क्या रहा है? We do not have internationally competitive banks, and no bank is in the global top 50 except SBI, which is also at 48th position. If you look at the top banks of the world, in the top 5, 4 are Chinese banks. How do we compete with China? When it comes to diplomacy, when it comes to the idea of getting contracts abroad, right? How do we compete with them? In context of China, some of you might have heard this term, checkbook diplomacy. Why is China able to execute checkbook diplomacy? Because they have huge number of big banks who are able to give loans at concessional rates. Through this checkbook diplomacy, they have executed something called the Belt and Road Initiative. By giving concessional loans, then having debt to equity swaps. पढ़ेंगे वो भी कभी डिटेल में, IR जब देखेंगे. Right? We cannot follow through on this because हमारे पास banks ही नहीं है जो internationally competitive हो. Right? Therefore, looking at this problem in the banking structure of India, committee under Mr. J. Narasimhan, who was earlier RBI governor, and Raghuram Rajan committee, also ex-RBI governor, these two committees have given a recommendation for the banking structure of India. They have said that from this top-heavy inverted pyramid structure of banking, we actually need an actual pyramidal banking structure in India. We need that we should have majority of small and local level banks. अगर आप USA में देखो, for example, this is their exact banking structure. They have lot of small banks, New York Bank, Boston Bank, small local level operating in a small area, developed regional intelligence. Big American banks are Wells Fargo, JP Morgan Chase. People are not putting their money there. Ordinary people are not putting their money in Wells Fargo. They're putting it in New York Bank, they're putting it in Boston Bank, and then Wells Fargo and JP Morgan Chase get freed to loan at internationally competitive rates to then gain long-term profits. So in the Indian banking system, the reform that is needed is to have large number of small and local banks who can then specialize at the local level. Then we have a certain number of regional and nationally present banks. A bank can be present nationally,
but it can be strong in some regions. For example, Axis Bank present nationally, strong in North India. And at the top, we need small number of internationally competitive banks. Then we will be able to fully realize the potential of our banking system. This is the recommendation regarding banking given by Narasimhan Committee and Raghuram Rajan Committee. समझ आ गई बात? Is the logic clear? Is the logic clear to you now? ठीक है, देखो, ideally now I should have showed you a mains question. अब मैं आपको एक मेंस क्वेश्चन दिखाता कि देखो मेंस में पूछा जा चुका है ये सेम चीज. दिस थिंग हैज नॉट बीन आस्क्ड इन द मेंस येट एंड यू शुड बी हैप्पी विद इट. आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि मेंस में नहीं पूछा गया है. इसका मतलब अब पूछा जाएगा. दिस इज अ मेजर फैक्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. इसका मतलब अब पूछा जाएगा. सम और द अदर वे इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड नाउ. है ना? Now you should be remembering this and hope that it gets asked in your means. ठीक है, आप होप करो कि आपके मीन्स में पूछ लिया जाए. ठीक है, लेट्स मूव ऑन नाउ कुछ और तरह के बैंक्स जो हमने पहले नहीं पढ़े थे, which we did not understand earlier. One was custodian bank. This type of bank is not present in India, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. Just broadly you need to know. Custodian banks are custodians. This word comes from custody. Right? Now, for safekeeping of certain assets. अभी हमें लगता है mainly our asset is what? Gold, jewelry, etc. इसके लिए लॉकर्स हैं. Custody of certain more valuable assets such as intellectual property rights, digital assets. For custody of these assets, custody of power of attorney, making of escrow accounts, ये सब क्या होता है? We'll see. These banks are mainly for custody of assets. Beyond this, we don't need to go because India does not have this sort of bank yet. India does not have any such custodian banks yet. We don't need to go into detail of this. We just need to understand this. Right? Now, wholesale bank. Wholesale bank is also not there in India, but India has something called DFI, Development Financing Institution. Now, is the need for development financing institution clear to you? DFI की नीड क्या है? Because we need cheap loans. हमें cheap loans चाहिए for infrastructure development, for international competitiveness. Therefore, we have something called as Development Finance Institution. Read the name clearly. This institution is meant to finance development. ठीक है, इसका काम ही है कि ये डेवलपमेंट को फाइनेंस करेगा. देखो क्या लॉजिक है यहां पर. Infrastructure projects need large amount of money and these banks or these DFIs, they should not call them banks. इनके नाम में बस बैंक है, they are not actually banks. These development finance institutions will actually finance these infrastructure projects. They are not accepting deposits from ordinary people. ये ordinary लोगों से deposits accept नहीं कर रहे. I cannot go and deposit my money in development finance institution. There is a development finance institution in India now. This was introduced in 2023 by an act of parliament. It is called NABFID, National Bank for Financing Infrastructure and Development. अभी डिटेल में देखेंगे. National Bank for Financing Infrastructure and Development. It will take funds from whom? It will take funds from RBI, from government, from World Bank. It can also issue its own bonds. ये अपने bonds भी issue कर सकता है. From this, it will give loans for infrastructure projects under something called National Infrastructure Pipeline, which also we will see. अब इसका पर्पस क्या था? Why has this been introduced? Because we do not have banks that are big enough
to give concessional rate loans. SBI cannot give loans below 8%. Right? Therefore, we need this type of bank so that we can do financing for large infrastructure projects. Large infrastructure projects are included in something called National Infrastructure Pipeline. So this bank will take money from RBI, from government, from World Bank, from issuing of its own bonds. Then it will give loans for large infrastructure projects under National Infrastructure Pipeline. Who is going to regulate this? RBI is going to regulate this. No, DFIs have not been created on the recommendation of Raghuram Rajan committee. That recommendation is on the basis of structure of banking system, कि कैसा होना चाहिए. This is a different ball game. The reason might be the same. ये वहां से related नहीं है. Raghuram Rajan committee and Narasimham committee was going to explain what? Structure of banking system. One of the solutions is this. Right? This is the idea. समझ आई ये बात? नैबफिड का आइडिया समझ आया? समझ आई ये बात? अब now this is the last term we have to read in terms of banking. Then we will move on to something called non-banking financial companies. इसके बाद हम समझेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. ये लास्ट टर्म है बैंकिंग की. इसके बाद मैं आपको ब्रेक देता हूं. आई नो अंदर से चाह आ गई होगी आपकी ब्रेक की. ये पढ़ लेते. देयर इज अ टर्म कॉल्ड कोर बैंकिंग सोल्यूशन. देखो, दिस इज मी. आई गो टू अ सर्टन बैंक. ये एक बैंक है. This bank has various branches across India. ठीक है. I go to this bank. I submit my documents here. I submit some money here, and my account is opened in this branch. Now tomorrow I want to go to this branch and access my bank account and withdraw some money. Tomorrow I want to go to this branch, withdraw some money, access my account, gets my passbook updated, write a check, etc., whatever. Now, my data, documents and account are in this branch. There has to be a way for all the branches of the bank to be connected and all the data to be connected in one place. Only then I will be able to operate in any branch I want. नहीं तो मुझे बार बार इसी ब्रांच में जाना पड़ेगा. राइट? तभी बार बार इसमें जाना पड़ेगा. अंडरस्टूड? तो एक तरीका होना चाहिए टू कनेक्ट ऑल दीज बैंक्स टुगेदर. राइट? This connection of all these branches together, what is it effectively doing? Now if all the branches are connected together, right, what is happening? Now I am actually a customer of this bank. अब मैं बैंक का कस्टमर हूं. Wherever this bank is, I will feel I can go and access my services. If these branches were not connected together, I would become a customer of the branch. मैं सिर्फ ब्रांच का कस्टमर रह जाता. ब्रांच में अकाउंट है, ब्रांच में पैसे दिए हुए हैं, ब्रांच में डॉक्यूमेंट्स हैं, उसी ब्रांच में जाओ और वापस आओ. नाउ दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड, नाउ आई एम अ कस्टमर ऑफ द बैंक एक्चुअली. This system that will connect all the branches together, that will centralize the data in one place, this system is called core banking solution. It is a software used by banks to manage their primary operations of depositing and lending. It leads to networking of bank branches. It leads to centralized data management, and it can lead to branchless banking.
What is the meaning of branchless banking? You can enjoy the banking service from any branch which is on the core banking solution network, regardless of the branch where your account is opened. आप किसी भी branch पे चले जाओ, आपको वही services मिलेंगी. आप home branch पे जाओ या किसी भी branch पे जाओ, because they are all connected. You are now effectively, you are the customer of the bank, not the customer of the branch. This software that connects all of this together is called as core banking solution. Why is it required? This is from the website of a bank only. It is required to meet dynamically changing market and customer needs, simplify the banking process, convenience to customers, speed up banking transactions, and to expand presence in rural areas also. Now, if you have one branch in rural area, then also all the branches are connected to it. This is known as core banking solution. RBI is also a bank technically. It is the central bank of the country. RBI's core banking solution is called eKuber. eKuber is simply the name. eKuber is simply the name of RBI's core banking solution. The platform that RBI uses for this purpose is called eKuber. RBI के core banking solution का नाम है eKuber. Is this clear? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है. नाउ वी विल गो ऑन टू एनबीएफसीज. पहले हम नाबार्ड पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा सा एनबीएफसीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उससे पहले यू कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक. लेना है ब्रेक? बताओ, डू यू वांट अ ब्रेक? ऑल्दो आई एम श्योर ऑफ द आंसर आई विल गेट. ठीक है, काफी लोगों ने यस भी बोल दिया, काफियों ने नो भी बोला. कोई बात नहीं, तुम 2 मिनट मांग रहे हो, मैं 4 मिनट का ब्रेक देता हूं तुम्हें. You're asking for 2 minutes, I will give you 4 minute break. But after the break, you will have to do something for me. ठीक है, चलो ब्रेक लेते हैं. अब ब्रेक के बाद तुम मेरे लिए कुछ करोगे. ठीक है,
Did you enjoy your break? Did you enjoy your break? मजा आया आपको ब्रेक में? Did you enjoy your break? चलो, now you need to do something for me, which is there is a small test now. ठीक है, अब आप एक टेस्ट दो आप छोटा सा, ठीक है? चलिए स्टार्ट. Okay, question 2. इसको तो गलत मत करो यार. It's fairly simple. Okay, question 3. Think carefully in this one. Okay, question 4.
Okay, question 5. You have not read this yet. This will become apparent at the end of the class. I still want you to attempt it. I know आपने नहीं पढ़ा है. अटेम्प्ट कर लो. इसका आंसर, इसका गलत आंसर आप देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये अभी पढ़ा नहीं है. All right. Question 6. Now it's completely visible. I'll just write option D. Option D is all of the above. लिख देता हूं यहाँ पे. All right. Question 8. I have, पहले मेरी मम्मी का क्लिनिक मेरे घर पे ही था. I have grown up hearing babies cry. So you also bear with it. Question 8 करो. ठीक है, फेयरली सिंपल, इसके लिए इतना टाइम नहीं चाहिए. लास्ट क्वेश्चन. All right, fair, done.
चलो अब देखते हैं, लेट्स लुक एट द आंसर्स फ्रॉम द स्टार्ट. What is the purpose of setting up small finance banks in India? To supply credit to small business unit, yes. To supply credit to small and marginal farmers, yes. To encourage young entrepreneurs to set up businesses, particularly in rural areas. ये कहीं पे लिखा है स्मॉल फाइनेंस बैंक के फंक्शन में? ये क्या है? ये है ओवर थिंकिंग. You will give this answer if you have correct, you think this answer is correct, then this is overthinking. ये तो कहीं नहीं लिखा, ये डायरेक्टली लिखा है, ये डायरेक्टली लिखा है. अगर एंटरप्रेन्योर्स मैं मान भी लूं कि वो अपने कुछ ब्रांचेस रूरल एरियाज में खोलेंगे, उससे वो लोन्स देंगे, उससे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसेस सेटअप कर सकते हैं, इवन इफ दिस लेवल आई अग्री टू, देन ये वर्ड कहां से आया? यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात कहां से आई? यंग ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि यंग लोगों को ही लोन देंगे. ऑल्दो स्टेटमेंट अपने आप में भी गलत है, बट यंग लिखने के बाद तो ये पूरी तरह ही गलत हो गई. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यू एलिमिनेट ऑप्शन थर्ड, you will get the answer 1 and 2. This is why studying the logic of banks was important. Question इन्हीं चीजों पे पूछा जाता है. We have studied the details just to cover our basis, but generally questions come on logic. Next देखते हैं. Establishment of payment banks is being allowed in India for financial inclusion. Which are correct? Mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and controlled by residents can be eligible to be promoters. Yes. Can issue both credit cards and debit cards? No. Cannot issue credit cards. Second out, second out, second out. This is correct. है ना? Fairly simple, just had to eliminate that second option. Now, Reserve Bank of India regulates commercial banks in matters of what? Reserve Bank of India is the regulator of banks. It will regulate banks in all matters. In liquidity of assets, of course, we have heard of CRR, SLR. In branch expansion, yes, there are certain regulations. In mergers, there are regulations. In winding up, there is regulation. Winding up means to close the bank. Wind up this class. Finish this class. Wind up the bank. Close the bank. तो भी आपको अपने RBI से लाइसेंस लिया है. See, I could have given you this list earlier also. It was very easy कि मैं आपको ये लिस्ट लिख के दे दूं जब मैं आपको RBI के फंक्शंस पढ़ा रहा था. बट आई वॉन्ट कि आपकी ये थिंकिंग भी डेवलप हो. इट इज वेरी इजी. मुझे पता है मुझे एक क्वेश्चन कराना है, 2013 का क्वेश्चन है. वेरी इजी फॉर मी टू राइट डाउन दीज फंक्शंस एंड देन से कि प्लीज आप ये याद कर लो. बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर ट्राइंग टू फॉलो हियर. मैं चाहता हूं आप ये अप्रोच भी डेवलप करो कि आप ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सको. राइट? आंसर हियर इज डी. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स कॉन्स्टिट्यूट लेंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर, MSMEs, weaker sections, yes. So answer is D, all of the above. Simple. This question अभी के लिए छोड़ते हैं. We will just answer. ये वाला मैंने आपको आता, मैंने पढ़ा नहीं है. 6. With reference to urban cooperative banks in India, consider the following statement. They are supervised and regulated by local boards set up by state governments. No. They are supervised and regulated by RBI after PMC scam. PMC scam हुआ, आरबीआई ने रेगुलेट करना शुरू किया. नेक्स्ट ईयर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में. दिस केम इन माय प्रीलिम्स. दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज गिविंग. यू एलिमिनेट ऑप्शन 1. You don't even have to read anything else. Answer is 2 and 3. What are preference shares and what are equity shares? We will see that when we read capital markets. The term core banking solutions is in the news. Which of the following statement describes this? Networks of bank branches which enables customers to operate their accounts from any Just 1 second. I'm just coming back.
एक मिनट में आ रहा हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। Hello, can you hear me now? Now can you hear me? अब आनी तो चाहिए आवाज। Okay. So second option is also wrong. Third option is also wrong. Only first statement is correct. Answer is 1. Next, service area approach implemented under lead bank scheme. This is the correct option. Basic aim of lead bank scheme is individual banks should adopt particular district for intensive development. बिल्कुल, आंसर इज सी। ये तो हमने पढ़ाई है आज ही, लीड बैंक स्कीम। एक बैंक को लीडर बनाओ एंड पॉइंट इज डन। क्वेश्चन 7 में both those statements are wrong. Our core banking solution is to connect branches. It is not to increase RBI's control. Core banking solution is not to take, not for NPS. ये तो related ही नहीं है CBS से। So second is wrong, third is wrong, only 1 is correct. Answer is A, 1 only. Score बताओ, बताओ स्कोर। क्वेश्चन 5 छोड़ दो ना, लेट क्वेश्चन 5 बी। आप स्कोर 8 में से बताओ, डोंट वरी अबाउट क्वेश्चन 5। फेयर इनफ, इसमें फुल आने चाहिए थे यार वैसे, मतलब अब गलती मत करना। यू कैन मेक 1 or 2 मिस्टेक्स, 6 इज डिसेंट, आइडली यू शुड गेट फुल। ठीक है, ऑल राइट, चलो कंटिन्यू करते हैं। These are all prelims questions, by the way. Even these two are prelims questions. UPSC, CSC prelims questions. Okay. Now, let's continue. देखो, banks are financial intermediaries. They are an intermediary between you and me. You want a loan, I want to deposit my money. मेरा ही पैसा वो आपको दे रहे हैं, right? They are doing simply the job of a broker, of an intermediary. I am giving my deposit, they are giving that deposit out as loan. However, other than banks, there can also be certain other institutions who are financial intermediaries. बैंक के अलावा भी तो कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो सकते हैं, राइट? जैसे कि मान लो एक म्यूचुअल फंड कंपनी टेक्स माय मनी, बायज म्यूचुअल फंड्स, और आई that money takes my money, it buys some stocks, whatever return on stocks is there, it keeps some profit with itself and gives the rest to me. That is also there. So they can be classified, any financial intermediary other than banks can be classified in 2 forms. One is all India financial intermediaries and one is non-banking financial companies or NBFCs. All India financial intermediaries or NBFCs. Okay. One of these all India financial intermediaries is NABARD. अब AIFI पढ़ते हैं, All India Financial Intermediaries. One of these is NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD was set up in 1979, or actually after 1979. Firstly, this committee was formed called B. Sivarman Committee. B. Sivarman ji at that time was member of Planning Commission. Committee was made under him to identify the problems in rural credit. He said, or his committee said, that we need a dedicated agency for rural credit and development. Following the recommendations of B. Sivarman Committee, NABARD was established. NABARD is currently 100% owned by Government of India. So all the shares of NABARD are owned by the Government of India.
NABARD was given three types of functions. Three functions were given. One was financial function. In financial function, the first job of NABARD was to do refinance. What is refinance? Refinance means this is, let's say, a rural bank. It was seen rural bank का lending rate is low, या let's say regional rural bank, इस पे क्या कंडीशन है lending rate पे? कंडीशन इज कैन नॉट बी मोर देन कोऑपरेटिव बैंक, है ना. हमने एक कंडीशन लगा रखी है, रीजनल रूरल बैंक अगर लेंडिंग करेगा तो कोऑपरेटिव बैंक के रेट से ज्यादा पे नहीं कर सकता. सो लेंडिंग रेट ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज लो. पीपल वांट टू टेक लोन्स फ्रॉम रीजनल रूरल बैंक, बट अगर इसका लेंडिंग रेट लो है, इसका सेविंग्स रेट क्या होगा? ये सेविंग्स पे क्या इंटरेस्ट देगा? ये भी लो होगा. दिस वाज आल्सो लो. So people in rural areas, what would they do? They would keep their savings with scheduled commercial bank. They will take loans from regional rural bank. तो रीजनल रूरल बैंक से लोन ले लिया और अपनी सेविंग जाके शेड्यूल कमर्शियल बैंक में रख दी, राइट, ताकि इंटरेस्ट रेट मुझे अपनी सेविंग्स पे हाई मिले और लेंडिंग रेट मुझे कम मिले. अब what will now happen? This regional rural bank will run out of funds. इसके पास फंड्स ही नहीं होंगे लैंड करने के लिए. Then NABARD, in this case, will lend money to this regional rural bank. NABARD's job is to refinance. It will lend money to someone. NABARD will lend money to some institution. This institution will lend money to you, or rather to rural customers. NABARD will not directly lend money to you. NABARD's main job or NABARD's function as given by B. Sivarman committee was to do refinance. This is NABARD's function. अब वो क्वेश्चन याद है, फिफ्थ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू हाउसहोल्ड्स. Is NABARD giving direct credit assistance? No. और वो ऑप्शन एलिमिनेट करके उसका आंसर आता है फिफ्थ क्वेश्चन जो हम देख रहे थे. NABARD's main function is to do refinance. Then other function of NABARD is building rural infrastructure. इसके लिए it has a fund, Rural Infrastructure Development Fund. Then it can make district level plans. It has to make district level plans at the rural level. District level plans at the rural level for financial inclusion. Then it has some financial responsibilities. It has some developmental responsibilities. Developmental responsibilities are designing of new schemes and implementing existing schemes, as well as training handicraft artisans. Right? ये तो छोटा फंक्शन है. इन स्कीम्स की बात करते हैं. डेवलपिंग न्यू स्कीम्स एंड इंप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स. यू रिमेंबर वी रेड दिस प्रोग्राम एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम. एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम पढ़ा था आपने, हमने पढ़ा है पहले. दिस एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम वाज डेवलप्ड बाय NABARD. ठीक है. आप ये लोग बहुत पूछ रहे थे किसान क्रेडिट कार्ड. आज the idea of Kisan credit card was also developed by NABARD, because this is a tool for ensuring financial inclusion in the rural areas, development in rural areas. NABARD ने idea develop किया of Kisan credit cards. This is not saying that NABARD pays for the Kisan credit card. Kisan credit card पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे. But NABARD has developed this idea. Then NABARD also does supervision. तीसरा type of function is supervision of regional rural banks. Regional rural banks का supervision. Who is the ultimate regulator of RRBs? RBI. RBI ने अपना function NABARD को दे दिया because RBI had too many things to do. So regional rural banks are supervised by NABARD. Clear?
Now, other than this, there are some other AIFIs also. Other than NABARD, there are some other all India financial institutions also. One is EXIM, known as Export Import Bank of India. One is NHB, National Housing Bank. One is SIDBI, Small Industries Development Bank of India. As we go on, we will read them. जब इनके बारे में बात होगी, then we'll read them. EXIM and NHB we will read. NHB we will read with capital market. EXIM we will read with international economics. SIDBI we will read when we are reading industries. Okay. NABFID, ये हम पढ़ चुके हैं. National Bank for Financing Infrastructure and Development, this we have read. This is also an all India financial institution. So currently there are 5 all India financial intermediaries. One is NABARD, NABARD हमने देख लिया. EXIM, NHB, SIDBI and NABFID. Okay. Now, ये तो all India level की government entities हैं. These are government entities. There can also be various companies that operate between you and me. For example, let's take the example of a gold loan company. What is gold loan company doing? होता है ना, मुथूट फाइनेंस, ऐसी एड्स भी आती थी पहले बहुत गोल्ड लोन कंपनीज की. You submit your gold, they will keep that gold, give you a loan for it. Sometime later you can return the loan and take back the gold from them. है ना? This is what they are doing. They are not banks. बैंक तो नहीं है वो, right? They are returning money for gold. That's all they are doing. This is also a financial intermediary. ये भी एक financial intermediary का ही काम कर रहे हैं. But this financial intermediary is not a bank. So these type of companies are called non-banking financial companies. They are doing a financial job, a financial purpose, but they are not a bank. So non-banking financial companies, NBFCs. ठीक है? Now, NBFC is where we will start from in the next class. हम NBFC से ही start करेंगे from the next class. Before we come to this, before we come to NBFCs, I want that you guys watch all the lectures of agriculture, the remaining lectures of agriculture. Now, the point is that if you are preparing for 2026, you can ignore them. मैंने आपको पढ़ाने हैं. If you are preparing for 2026, you can let it go. You also have a lot of time on your hands, तो आप मत देखना. But if you are preparing for 2025, please watch all the lectures of agriculture. जो 3 बच गए हैं, उनको please complete कर लो. I will upload them today. Okay, today is Saturday. I am assuming you will watch one on Sunday, one on Monday, one on Tuesday. 3 दिन मैं आपको दे रहा हूं. And please complete this. Please complete this agriculture thing. एक काम आपको और करना है. This is not the only homework. You have to do one thing. मैं आपको पहले से ही दिखा देता हूं that this question, millets, हमने डिस्कस किया था ये millets, and this question on buffer stocks and storage. 4 क्वेश्चन आए एग्रीकल्चर पे इस साल मेंस में. ठीक है, चारों देख लेते हैं. Factors responsible for successful implementation of land reforms. Role of millets in ensuring health and nutritional security. Challenges by Indian irrigation system. Measures taken for efficient irrigation. And importance of buffer stocks. 4 क्वेश्चन आए हैं. You have to write these 4 questions. I know you will not be able to write a complete answer. That's okay. मुझे पता है आप बिल्कुल अच्छे से नहीं लिख पाओगे. At least you should read the notes and try close the book. Notes पढ़ने के बाद close the book and try writing the points. अगर आप सिर्फ points याद कर लो. देखो आंसर लिखने में 3 चीजें हैं. There are 3 things in writing an answer. First is content. Then is structuring. Then it is presentation. This is 80% of the job. This is cumulatively 20% of the job. तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे, if this you are not able to do,
This is okay. This should not remain a problem for you, especially if you are preparing for, ये मैं 2025 वालों से ही बात कर रहा हूं, 2026 वालों से बात नहीं कर रहा, ठीक है? This if you are not able to do, you can leave, कोई बात नहीं, ये आप सीख जाओगे. ये अगर नहीं होता तो प्रॉब्लम है. वॉच द लेक्चर्स. क्वेश्चन लीक हो चुका है पहले ही, आपको पता है क्या आना है. यू ऑलरेडी नो व्हाट इज गोइंग टू कम. आई वांट कि आप बुक बंद करके यू प्लीज राइट एट लीस्ट दिस मच. बुक बंद करके प्लीज राइट दिस मच. ठीक है, ये आपने लिखना है. दिस इज बेयर मिनिमम दैट यू हैव टू डू. ओके, आप पॉइंट्स लिख दो, आप ना सोच पाओ, स्ट्रक्चर ना बना पाओ, इंट्रोडक्शन ना सोच पाओ, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट पॉइंट शुड कम टू यू. आई एम अज्यूमिंग आप 3 देख चुके हो. यस, ऑल इन वन गो. मैं अभी समझा रहा हूं आपको. आई एम अज्यूमिंग यू हैव वॉच्ड 3 लेक्चर्स. यू विल वॉच 3 मोर लेक्चर्स. संडे को कोई ब्रेक नहीं लेगा. मंडे यू विल वॉच अ लेक्चर, ट्यूसडे यू विल वॉच अ लेक्चर. Tuesday evening, you have a time of, let's say, 45 minutes. अब ये टेस्ट आप खुद ही कर सकते हो. आई कैन नॉट इंश्योर कि आप ये टेस्ट एक्चुअली एग्जीक्यूट करो या नहीं. 45 मिनट्स का टाइम है, 4 क्वेश्चन है, चारों पे आपको 3 पेजेस लिखने हैं. स्ट्रक्चर डज नॉट मैटर, जो लिखना, कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए, पॉइंट्स रेलेवेंट होने चाहिए. राइट 3 पेजेस ऑन इट. फॉरगेट द स्ट्रक्चर, फॉरगेट द प्रेजेंटेशन, इट डज नॉट मैटर. जैसा भी स्ट्रक्चर या प्रेजेंटेशन हो मैटर नहीं करता, कैसा भी हो मैटर नहीं करता, लिखना जरूर है. ठीक है. अब नाउ हाउ विल आई चेक? 3 पेजेस मीन्स 3 साइड्स, ऐसे 1 2 3, 3 साइड्स, 3 साइड्स. ठीक है. हाउ विल आई चेक कि आपने लिखा या नहीं, है ना? मुझे चेक भी करना है, और देयर इज नो वे, मैं आपके घर तो आ नहीं सकता चेक करने के लिए. वंस यू राइट, आपको संडे को लेक्चर मिलेगा, एक मंडे को मिलेगा, एक ट्यूसडे को मिलेगा. आई विल अपलोड देम इन द मॉर्निंग ओनली. मैं सुबह सुबह अपलोड कर दूंगा. वंस यू हैव रिटन दीज 3, you send, after writing you scan and send it here. ठीक है. The first 5 that I get, I will review in class. यहां खोल के नाम दिखाए बिना, I will not show your name, so don't write your name on the page. नाम दिखाए बिना the first 5 in the next class I will review here. I will tell you what is good, what is bad, what could have been better. I think this is the best way to teach you how to write an answer. है ना? तो ये 4 क्वेश्चन है. क्वेश्चन मैं कैसे कंफर्म? आई डोंट हैव टू कंफर्म द क्वेश्चंस ना. आप GS3 का पेपर लो, 2024 का 4 क्वेश्चन है एग्रीकल्चर पे. क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, ये 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं. राइट इन टाइम बाउंड मैनर. आई विल नॉट टेक योर नेम. राइट, देखो मेरे हिसाब से इससे बेटर कोई तरीका नहीं है आंसर राइटिंग सीखने का. दे हैव टू बी सेंट ऑन ट्यूसडे, बिकॉज ट्यूसडे तक, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, संडे को यू विल गेट लेक्चर 4 ऑफ एग्रीकल्चर, मंडे को यू विल गेट लेक्चर 5 ऑफ एग्रीकल्चर, ट्यूसडे को यू विल गेट लेक्चर 6 ऑफ एग्रीकल्चर. वॉच दीज 3 लेक्चर्स. Tuesday, once you have watched lecture 6, revise, then write 3 pages answer on these 4 questions of this year's GS3 paper. Then scan these 3 pages and send them here. Obviously I can't review all. 3 pages for each question, so total 12 pages. Actually the first 4 I'll get, I can't review 5. The first 4 I get, I will review. पहले 4 जो आएंगे मैं उनको रिव्यू कर दूंगा. If I get them before Tuesday, I will not review, because इसका मतलब आपने देखा ही नहीं.
आई एम नॉट अपलोडिंग इन वन गो, मैं बता देता हूं आई एम नॉट अपलोडिंग इन वन गो, बिकॉज फिर आपको होगा कि किसी ना किसी तरह मेरा बस रिव्यू हो जाए 1.5x पे, जल्दी जल्दी ये टॉपिक्स देखो और इस पे लिख दो, ठीक है। दिस इज वाई आई एम नॉट अपलोडिंग इन वन गो। यहां मेरे से रिव्यू कराना पर्पस नहीं है, यहां सीखना पर्पस है। समझ आई बात? यहां पे पर्पस है दैट यू लर्न। किसी का भी रिव्यू हो, आपका रिव्यू हो या ना हो, हाउ डज इट मैटर? हाउ डज इट मैटर? आपका रिव्यू हो या ना हो, हाउ डज इट मैटर? आपको सीखना जरूरी है। मैं सारी क्लासेस मॉर्निंग में ही अपलोड करूंगा 9 बजे, राइट। ट्यूसडे को जब क्लास अपलोड हो जाएगी उसके बाद आप किसी भी टाइम भेज सकते हो। द फर्स्ट 4 आई गेट आई विल रिव्यू, ठीक है। द फर्स्ट 4 आई गेट आई विल रिव्यू। समझ आ गया? सो नाउ वी विल मीट ऑन वेडनेसडे। वी विल नाउ मीट ऑन वेडनेसडे। अगर आप 2026 के लिए पेपर दे रहे हो, यू कैन कंप्लीटली इग्नोर दिस प्रोसेस। You will have no loss of time or anything if you ignore this process. I will still want कि आप लेक्चर्स एक बार देख लो, बट समझ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, वो हम बात कर चुके हैं पहले। We will meet on Wednesday, which is the 1st of January, and we will continue from NPFCs. So before I go, firstly, a very happy new year to you and your family, right? And please do this process so that I can also tell you how I would have written. My idea right now is I will also write. मैं भी लिखूंगा आंसर्स, मैंने यही सोचा है कि आई विल ऑल्सो राइट एंड आई शो यू माइन ऑल्सो, देन ऑल ऑफ यू कैन कंपेयर, ठीक है। सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आई विल सी यू नाउ ऑन द 1st ऑन वेडनेसडे, ठीक है। एंड प्लीज डू दिस सो दैट इफ यू डोंट डू इट, आई विल स्टिल गेट एक्सेस टू एवरीथिंग, बट इफ यू डू इट यू विल लर्न अलॉट। मेरे हिसाब से आप काफी सीखोगे अगर आप ये करोगे तो, ठीक है। चलो, have a very happy new year and a very good evening. See you now on 1st.